I think I should open up about this. I am intersex. I, as an intersex child, went to an all-boys college. Okay. And which is why I went to that specific all-boys college, because my father was the medical officer there. And he was like, कि मेरी आंखों के सामने रहेगी तो हमें पता है किसकी जिंदगी किस तरीके से चलानी है. So when I said I'm transitioning, that transitioning was a social transition. कि I am not going to use he, him pronouns anymore. ठीक है. I am not going to use the male vernacular for myself. I am going to be using she, her pronouns, and I'm going to be dressing this particular way, which is probably a feminine way. Definitely a feminine way. This is my transition. I am not asking for any mard ka haath in shadi. सही है. And if anybody is interested in me sexually or for marital purposes, you can actually come and ask me that question and I will give you an answer what I have and what I don't have. This information does not need to be public knowledge. मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी वजाइना है कि नहीं. I will leave that to your imagination. वो आप लोग देख लें. और मैं क्यों बताऊँ, मैंने नहीं बताना. ठीक है. I've always kept it secret. मैं बचपन से सीक्रेसी के साथ पली बड़ी हूँ. 4 साल की उम्र से मैंने होश संभाल लिया. पीडियाट्रिक ने मुझे हाथ लगाने शुरू किए हैं और मुझे समझ आई है कि अच्छा मेरा हर महीने के बाद मेरा चेकअप होता है टू सी इफ थिंग्स हैव नॉर्मलाइज्ड और नॉट. तब से मुझे ये वाली बात पता है कि माय पैंट्स नीड टू बी पैंटेड अप, माय जिप्स नीड टू बी जिप्ड अप. Nobody needs to see what is underneath, because if they see it, all hell will break loose. That is the reality with which a lot of children with ambiguous genitalia grow up. I also have another question. I was checking out your podcast, and it was 1 year ago or 2 years ago you gave a podcast, and you said something about a lot of your friends, some of your friends still address you as Muiz. Yeah. And you're fine with that. Yeah. But you also said right now Muiz used to be a part of you, but is Muiz still part of you? Is it? We said our goodbye to him. A very heartfelt goodbye. Okay. बड़े मजे का. यार मुझे बहुत पसंद है मुइज. वो ना होता तो मैं ना होती. यार उसने खैबर पख्तूनख्वा सर्वाइव किया तालिबान के ज़माने में. आप मुझे निकाल के दिखाए ना खैबर पख्तूनख्वा से एक नॉन डांसिंग नॉन, एंड आई हैव नेवर डन सेक्स वर्क इन माय लाइफ एवर. किया ही नहीं है. हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती हैं, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज ऑफर्ड टू यू व्हेन यू आर अ ट्रांस वुमन, राइट? कि यही है और आपने यही करना है. एंड ऑनेस्टली आई वुड बी रोलिंग इन मनी इफ आई वाज डूइंग सेक्स वर्क इन दिस कंट्री. But no, I am not that person. I don't want to do that. I have never danced at mujras. Not saying that these two are bad professions. मेरी बहनें करती हैं, बहनों से मुराद मेरी ट्रांस बहनें करती हैं बेचारियाँ. उनको है, अब उनकी ज़िंदगी में यही वाली एक चीज़ है वो करती हैं. मगर मैंने वाला कभी कहा, आप मुझे निकाल के दिखाएं ना, पाकिस्तान में से आप मुझे एक निकाल के दिखा दें. ऐसी ख्वाजा सरा मेडिकल कॉलेज सर्वाइव किया. ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जमात इस्लामी शदीद पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी कि अभी उन्होंने डीन के खिलाफ लेटर लिखा है 2 हफ्ते पहले कि ये मेहरब अयूब मेडिकल कॉलेज में एंटर क्यों हुई है. मैं उस दिन गई हुई थी वहाँ पे इवेंट अटेंड करने के लिए. एज एन एक्स alum ऑफ द कॉलेज दे हैव इश्यूज विद मी अटेंडिंग. सो आप इमेजिन करें कि जब मैं स्टूडेंट थी, जब मेरे पास कोई पावर नहीं थी, तब मेरे साथ क्या होता होगा वहाँ पे. तो ये मेहरब wouldn't have been able to do it. मेहरब wouldn't have been able to do it. It was Moiz, and Moiz did it. और वो बड़ा बेहतरीन हमारे दिमाग ने, खुदा ने, कुदरत ने डिज़ाइन किया हुआ था कि ये है और ये यूँ चलेगा. एंड उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये समझती हूँ कि मोइज का टेस्टोस्टेरोन का फैसला ठीक था. Yeah, no, for sure. I think now thinking about it, KP gave a medical school. Yeah, and I topped the MD-CAT. Like I was number 1 on the merit list. Oh shit. Yeah, so Moiz was a badass. Yeah, and you have done a lot by the way. I was reading about you. You have done you were a padhaku bacha. शदीद किस्म का पढ़ाकू बच्चा. Yeah, you're like a Fulbright scholar and all. Yeah, teacher's pet, because survival methodology भी यही थी. Teacher's pet होने के बगैर तो आप चल नहीं सकते थे. Because that's what protects you. But other than that, yeah, I was quite a padhaku bacha. Like Mehrab can't. I would have been fighting left, right, and center if I go to a medical college right now. मेरी वार्डन से भी लड़ाइयाँ होनी थी, मेरी प्रोवोस्ट से भी लड़ाइयाँ होनी थी, मेरी डिसिप्लिनरी कमेटी की चेयरपर्सन. But you don't seem somebody who will back off from a fight. I'd never back off from a fight. लेकिन मोइज डिप्लोमेसी चला लेता था. वो अपना सेंट्रिस्ट ले आता था अंदर का. He would be like, अच्छा okay, be quiet on these 4 issues. इस बंदे की तुम ये वाली एक राग पकड़ लिया ना, अच्छा play to it. इसी वाली बात पे लाके इसको कन्विंस कर दो and demonize the other party. क्लासिक स्ट्रैटेजी जो हमारी लॉबिंग के अंदर चलती है, बड़ी मुझे अच्छी आती थी, इसलिए मैंने पॉलिसी पढ़ी. अब मैं समझती हूँ कि मैंने तब ट्रांजिशन कर ली होती, शायद पॉलिसी ना पढ़ती. Moiz wanted to do policy. I think Mehrab wants to do the humanities and arts. I also realize how securitized Pakistan has become when you look at all of these school buildings, and they have big walls, upper walls ke upar electrified taare. So that's a very interesting point you brought. So you're a millennial, I would say. I'm 32. Okay, so we're the same age group. So
you know, remember ये A levels का जो time था, were you in Pakistan during 2010, 9? Yeah, totally, throughout. याद है जब बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए थे, स्कूल में बॉम्ब ड्रिल्स होना शुरू हो गए थे, बड़ी कॉमन प्लेस हो गई थी. लाहौर में तो मुझे याद है साइकेस में देवर बॉम्ब ड्रिल्स, एंड देन हमें ऑफ भी दी. वो जब ज़रबा अज़ब शुरू हो गया था, फिर उसके बाद ये पेशावर वाले जो मैसेकर हुआ था, उससे जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक इट वाज वेरी कॉमन प्लेस के बॉम्ब्स होते थे स्कूल में. अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई थी. I'm from KPK, so we didn't even need bomb drills because they were just happening. So वो चल रहा था. Were you there in KPK at that time? I am a bona fide KPKite. Okay. Yeah, born and raised. I was there for 23 years of my life. 22, 23. Okay. And then once I graduated, I was done with my house job, I moved to Lahore. And then I moved to the US. And then I moved to Karachi. वैसे KPK how that is as a place, because I feel KPK के बारे में ना there are assumptions as well. Quite a lot of them. क्योंकि यार secure नहीं है, society is massively conservative. Might be true, I don't know, but I feel I just not been there to even, you know. I would use the word traditional instead of conservative. Okay. Yeah, it's not necessarily conservative politically. Some places are definitely conservative. ठीक है. Like my maternal hometown is Mansehra, and I do think it's one of the most conservative places in Hazara. Also, KPK is not one. It's not just Pashtun culture. Like there is a Pashtun belt, there is a Hindko belt where I am from, Hazara belt. There is Chitral. Chitral का culture बिल्कुल different है. Chitral के अंदर भी recent अच्छी खासी एक वो attempts at forced political conservatism spread करने वाली काफी ज़्यादा चल रही हैं. Yes. Another very sad fact about KPK is that it's a very indigenous place, and despite all of that, a lot of people have now moved out. Abbottabad के अंदर यानी कि अब आपको ज़्यादातर migrants ही मिलते हैं. Like if there was a household of 5 people, there's just 1 home now. बाकी all 4 have moved, either abroad or elsewhere in the country. So it's very much like that, like an indigenous town that's getting empty, and now migrants are moving in. You know, I think I was looking at one of your podcasts and you were mentioning something about, or you were having this discussion, I want to say Chitral, and how the culture kind of recently with the Talibization and stuff has changed into वो shuttlecock burke आ गए हैं, और you know पहले ऐसा नहीं था, and you were talking about how this wasn't their culture. I was very curious about it. Like हमारे यहाँ तो नहीं है. Like we don't do shuttlecock burqas because it's not a part of our culture. हमारे यहाँ चादर की जाती है. Yeah. And I would say it's more to do with Afghani culture. Shuttlecock burqa. That's like the blue shuttlecock burqa. अच्छा, हमारे यहाँ कभी किसी ने shuttlecock वैसे honestly speaking burqas enforce करने की कोशिश भी नहीं की. Okay. People never really try to do that. Even there was शदीद किस्म का conservatism हमारे यहाँ मौजूद था. ये जो पूरी एक मुजाहिदीन की एक बेल्ट और एक पट्टी तैयार की गई थी बालाकोट के अंदर, खसूसी तौर के अंदर, वहाँ पे देवर लॉट ऑफ ट्रेनिंग कैंप्स. बच्चों ने तो ईद की छुट्टियों और समर जो ब्रेक नहीं आपकी होती इससे पहले बाकायदा रिक्रूटमेंट ड्रिल्स और कॉल्स हुआ करती थी मानसेरा के बाजारों के अंदर एंड ऑल. सो डिस्पाइट इतना शदीद किस्म का वो हमारे यहाँ कभी शटलकॉक बुर्कास ना इन्फोर्स किए गए ना. वो हो सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर आवर ओन कल्चर and we have a chadar, like we do have a culture of parda. Yeah, we have the culture of parda for तो sure. हमारे यहाँ वो है और हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट उसका है, which is a chadar, which I by the way really like. I think it's a really pretty part of the garment as well, and it's comfortable. आप बाहर जा रहे होते हो, आप ओढ़ के निकल जाते हो, and like you know it's just that. So हमारे यहाँ शटलकॉक बुर्का कभी नहीं है, and if somebody starts doing it, people are like, are you all right? कि तुम्हें क्या हो गया? ये कहाँ से आ गया? Like we get Islam and पर्दा, लेकिन ये बुर्का कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होता. So वो हमारे यहाँ ऐसा सच नहीं हुआ, लेकिन वो बाकी इलाकों में हुआ है. DI खान में हुआ है. Okay. एक पश्तून इलाकों के अंदर हुआ है काफी ज्यादा. हमारे में नहीं हुआ because we are a different language. And I've heard कि चित्राल के अंदर भी हुआ है. And this is direct result of Taliban. I think this is just a direct attempt at introducing anxieties and panics into a society that don't really exist. For example, कि हमारा माशरा खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है. And the biggest weak link out of all of this is of course going to be the women, right? So there's that. I really like KPK, but I also feel very sad about it. Like, I mean, I can be optimistic and positive. कि नहीं यार, किसी तरीके से, you know, we are all going to bounce back. Our country is going to bounce back. But I don't think anybody has that emotion anymore. तो वो जो खान साहब जो पीटीआई तो कहते हैं, हमने उसको पेरिस और मदीना का जो मिक्स बना दिया है KPK को, like the best ever. No, I think KPK was best under ANP. Okay. Awami National Party. I think Awami National Party को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, पश्तो स्पीकिंग पॉलिटिकल पार्टी है.
तो बाकी पाकिस्तान को ना कभी उनकी समझ आई, ना कभी किसी ने उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर और उनकी अच्छी चीज़ों के ऊपर नजरसानी की। दे वर वेरी गुड फ्रॉम 2008 to 2013। एंड तालिबान ने काफी लोगों को असैसिनेट भी किए थे और अटैक्स हुए थे, रिमेंबर जब ये खान वाले ये जब इलेक्शंस हो रहे थे, सारी टॉप पॉलिटिकल कार्डर मार दिया। यस यस सारी किस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डन टू पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न लैंड्स। बलूचिस्तान में भी यही हुआ है, केपीके में भी यही हुआ है। हमारी पूरी इंटेलिजेंसिया, हमारी पूरी जो इंटेलेक्चुअल खेप है, आप उसको मार देते हो डिलिबरेटली। आप इंडिजिनस कल्चर्स को बर्बाद करते हो। Like one of the things that Taliban did, for instance, after gaining power in KPK, not gaining power, sorry, when they were colonizing फाटा वगैरह का सारा इलाका, हमारे यहाँ पे मलिक का कल्चर होता था। मलिक सरदार होता है और मलिक्स आर लाइक नाइस पीपल, गुड पीपल। उनके यहाँ फैसला साजी वगैरह की जाती है। एंड ऑल ऑफ दोज मलिक्स वर एंटी तालिबान, दे वर एंटी वायलेंस, they were tribal people, they were a cultural people, they were a traditional people, but they were not that. So Taliban came in and they literally beheaded all of them and hung their bodies to make an example. Like आप imagine करेंगे, आप एक इलाके में पले बड़े हैं और उस इलाके की कुछ 1000-2000 साल पुरानी तारीख है, and this integral सरबराह का जो एक इमेज होता है और जो एक पर्सनहुड होता है, वो आपके यहाँ हमेशा से मौजूद है, and one fine morning you walk out and his dead body is hanging. What does that do to you? And that's very effed up and that unsettles you कि ये हो क्या रहा है? Who am I anymore? Like मेरा culture क्या है? मेरी सकाफत क्या है? Did you witness that? I did not, because I was in Abbottabad. So in Abbottabad, we never really had dead bodies or bomb blasts. This was predominantly in the Pashtun belt. Abbottabad में मैं रहा हूँ, गया हूँ बड़ी बार Abbottabad, some family there. So yeah, I never felt उस तरह का. Abbottabad seemed like a peace. It's very boring, not gonna lie. I mean, we only had Osama bin Laden. Yeah, we were. That's the thing. Osama bin Laden and Hassan Khan Niazi too. And we also had Hassan Khan Niazi. Yeah, basically मुझे सिर्फ होता है I know about the Bin Laden, but when you think about इस वजह से वो दिखाते हैं Zero Dark 30 जो मूवी है, उसके अंदर डेजर्ट, वो ऐसा है ही नहीं Abbottabad. Abbottabad is such a green, like a suburban kind of place. It at least looks like that. I mean, I watched Zero Dark 30 just with Jessica Chastain. I think she's so good. I still haven't seen Zero Dark 30. It's nice, मजे किया। But मुझे बस वो जैसे उन्होंने Abbottabad दिखाया था ना, मेरे दिमाग में आ गया था, वो सही दिखा देते, क्या होना था, दिखा देते थे सही. Why did they have to show a Middle East kind of? But that's literally the American perception of Pakistan, because even when Americans come to Pakistan, एक तो अब तो उनको वीजा ही बहुत मुश्किल से मिलता है ना, लेकिन जब उस जमाने में आया करते थे वो इस्लामाबाद से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद अपनी एम्बेसी के अंदर लॉक्ड होते हैं, that is it. Yeah. उनका बाहर निकल के घूमना फिरना बहुत मुश्किल है। बाकी गोरे फिर निकल जाते हैं। और एक ब्राजील वाले तो चिल फिरते हैं ना। ब्राजील के तो एम्बेसी के स्टाफ ने बाइकें खरीदी हुई हैं, स्कूटियां ली हुई हैं, स्कूटियों पे फिर रहे होते हैं, वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बाकी लोगों के साथ मुझे आइडिया था पाकिस्तान आना ना बाकियों के लिए बड़ा आसान होगा। तो मेरे भाई की भी शादी थी, so he had invited some of his friends. So that पाकिस्तान आना बिल्कुल भी आसान नहीं है. It is so difficult for an American to get a visa for Pakistan. Is like yeah, I was very surprised. Yeah. वो पता नहीं उनसे कौन से सिक्योरिटी चेक्स मांग रहे थे और आप ये करें वो करें, and yeah, it couldn't happen by the end of it. एक कहीं जाके थोड़ी सी पेटी खुशी भी होती है मुझे, बहुत अच्छा हुआ। तुम लोग भी बहुत मुश्किल से वीजा देते हो। तुम भी हमें बहुत मुश्किल वीजा देते, लेकिन जरा मजा चखो इस बात का थोड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ज्यादा जरूरत है लोगों को आने की। हमारे दोस्त बेचारे अफेक्ट हो रहे होते हैं, जिन्होंने शादियों पे आना होता है, सादे मासूम गोरे हैं जिनको अलिफ बे भी नहीं पता पाकिस्तान की। और एक दो जो चीजें हमारे पास है वो शादियां होती हैं, पहले वो बसंत होती थी, बसंत हमने खत्म कर दी। आई विश बसंत मेक्स अ कमबैक। ऐसे वो ट्राई करते हैं, वो आती नहीं, अभी भी होती है बसंत कुछ एरियाज में, बट इट्स जस्ट वी हैव लिटरली किल्ड दैट फेस्टिवल इन लाइक या। पंजाब का तो बेड़ा गर्क किया ना यार, पंजाब का तो बकायदा बेड़ा, लेकिन आपको ये मिल जाता है पंजाब में, ये सारे का सारा, ये मिडिल क्लास डेवलपमेंट, ये सड़कें, ये गाड़ियाँ, उर्दू बोल रहे हैं सारे, किसी के पास कुछ ना कुछ है, हाथ में पैसा शैसा आ रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू मर्डर्ड द कल्चर। यू हैव बैसाखी यहाँ पे नहीं होती, बसंत यहाँ पे नहीं मनाई जाती, लाहौर में तो अच्छा पंजाबी बेचारी बड़ी मारने की कोशिश की है, लेकिन पंजाबी मरी नहीं है। पंजाबी विद द प्रॉब्लम आई आल्सो फील आपने उन एवेन्यूज को कभी सपोर्ट नहीं दिया। अब लाहौर का एक बहुत बड़ा लिंक था आर्ट्स और कल्चर से, अभी इन्होंने बैन कर, नहीं होगा बैन, आई एम प्रीटी श्योर, बट वो बैन ट्राई कर रहे हैं अब स्टेज ड्रामा को कर दी है वहाँ, लेकिन वो लेकिन खुल जाएगा। वो पहले भी एक दफा इन्होंने ट्राई किया था, टू बी ऑनेस्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर द प्रॉब्लम इज नॉट द कंटेंट ऑफ स्टेज ड्रामा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आप अलहमरा जाओ ना, अगर आपने थिएटर करना है, तो आई यूज्ड टू डू थिएटर का मसला होता है, लाइक डाना यू वुड नो एज वेल, कि आपकी ना जो स्टेज होती है ना, अगर आप हॉल 1 में भी कर रहे हो, आपकी स्टेज इज मोर और लेस ओन्ड बाय स्टेज ड्रामा, बिकॉज इट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल। नॉर्मल ड्रामे आजकल कोई नहीं देखने आता। एक सेकेंड,
हम थोड़ा सा अगर हम वापस आके हम आ जाते हैं वापस, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा तो हमारे लिए। प्रॉब्लम ज्यादा आपके कि अलहमरा के कुछ लॉज नहीं है, कोई रिहर्सल वगैरह के लिए और लोगों को टाइम नहीं मिलता या वो होता मसला, वो उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड पे रोका है, पर दैट जस्ट मेक्स नो सेंस। या तो आप लाइवलीहुड दे रहे होते ना, बाहर भी थिएटर होता है, आप कौन होते हैं मॉरल पुलिसिंग के? या तो एक, अच्छा मुझे सारा फनी बात ये लगती है, या तो पाकिस्तान के पास होता है सऊदी अरेबिया जितना पैसा, मैं कहता हूँ हमारा तेल निकल रहा होता है हर जगह से। श्योर यार, आप गए, आपके पास पैसा है, आप चले स्टूपिड बातें भी करें, एटलीस्ट पैसा तो आ रहा है ना मैं कहता ना शक्ल ना पैसा, लेकिन डिमांड्स। Here and then we come back on this road. Okay. अच्छा, another fun fact. They've said कि हम लोगों ने स्टेज ड्रामास और थिएटर्स को स्टॉप किया because of vulgarity and obscenity. Fun fact, Pakistan does not have a working definition of vulgarity and obscenity. सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौलवी पहुंच गए सारे के सारे कि मुल्क में फहाशी आम हो रही है, इस्लामी मुल्क में फहाशी नहीं फैल सकती, हमने फहाशी को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेल एंड गुड, आप जाएं जरा फहाशी को डिफाइन करके लिया। And this happened in 2002 or 2003, I've forgotten. And these people have been unable to come to a singular definition of what obscenity stands for. So what ends up happening is कि ये उसको एक subjective उसके तौर पे rhetorical tool के तौर पे इस्तेमाल करते हैं to basically stop whatever they want to stop. हालांकि जो अलहमरा की और PNCA की गाइडलाइंस है थिएटर्स की, वो बड़ी क्लियर है कि आपने स्किन नहीं शो करनी, which is why कस्से हुए कपड़े पहन के जो भी आपके मुजरे नाच रही होती है ना, आप कभी गौर करेंगे स्किन उनकी नजर नहीं आती, उन्होंने फुल स्लीव्स पहने होते हैं। अच्छा, obscenity की जो only definition these people have ever been able to give in Pakistan, थोड़ी बहुत जो कि टीवी पे चलती है पैमरा पे, वो उन्होंने बॉडी पार्ट्स पे, कल से वापस जाकर सड़क पे हम लोग होते हैं, आगे से राइट हो जाएंगे। देयर इज वन बॉडी पार्ट, टू बॉडी पार्ट्स जिस पे इन लोगों ने डिफाइन कर दिया अच्छा ये ऑब्सीन है, ये हमने नहीं दिखाने। औरत की एंकल्स और औरत की आर्मपिट्स, ये आप नहीं दिखा सकते। अच्छा, मुझे इन बातों का इसलिए पता चला है बिकॉज आई गो ऑन टीवी क्वाइट अ लॉट फॉर दीज पॉलिटिकल प्रोग्राम्स एंड स्टफ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि साड़ी मैम हम संभाल लेंगे, लेकिन स्लीवलेस में आपने नहीं आना। ओके, बाजू आप पे कवर्ड होने चाहिए फुल। मुझे सिर्फ लगा दिस सच अ वियर्ड डिमांड कि आर्मपिट्स ना नजर आए। I'm like, why is he so particular Very about specific. armpits? There is something there. I'm just saying there is something there for somebody to be so particular. Armpits ना नजर आए। हाँ, कि ये कौन गया और ये कौन से साहब बैठे हुए थे पैमरा में, ये बगल की नजर आई है भाईजान। इन सब की मैं आपको बता रही हूँ, इन सब की अपनी वो है सेक्सुअल एंजाइटीज एंड फ्रस्ट्रेशंस हैं। Oh, I'm sure. It's because there's a lot of sex negativity in Pakistan, right? So what happens is Suppress किया जाता है ना। बचपन से अगर आपकी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी एंड शेम एसोसिएटेड है विद सच अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पांस, मैं ये नहीं कह रही आप उस पर एक्ट अपॉन कर लें, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि कितना एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पांस है, उसके साथ आपने इतनी नेगेटिविटी एंड शेम एसोसिएट की हुई कि आप जब सड़क पे निकलते हो और दुनिया में बाहर फंक्शन करने के लिए जाते हो ना, द मोमेंट यू फील अराउज्ड, देयर इज, वो आपकी जो ईगो है वो आपको कम्युनिकेट करती है कि दिस इज नेगेटिव, यू नीड टू बी अशेम्ड अबाउट इट। अब बिकॉज इट इज ऑल्सो सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, to secure your personality from deteriorating within, you are going to take all of that negativity and instead of internalizing it जो आपने already की हुई and sorting it out, you're going to project it onto somebody else कि ओ इस बंदी की वजह से मैं अराउज हुआ हूँ, ये बंदी मसला है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका अराउज होना भी मसला है, भाई हम भी दफ्तरों में काम करते हैं, खूबसूरत लड़के हमें भी नजर आते हैं, हमें भी बड़े प्यारे लगते हैं, हमने तो जाए कभी किसी लड़के को उंगल नहीं कराई, कभी किसी को हरास नहीं किया, कभी किसी के डीएम्स में नहीं घुसी, बिकॉज वी नो कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या है, ऑफिस की वर्क एथिक्स हमारे पास क्या है। ना ही वी हैव एवर हेल्ड गाइज अकाउंटेबल और दिस वेरी हैंडसम मैन हु जस्ट ड्रोव बाय ऑन अ बाइक अकाउंटेबल। आगे से ये वाला हमने काट लेना है, जरा सा ट्रिकी है, अभी जो आ जाएगा। No, that's interesting. That's true. I think एक आप अपनी माइंड के अंदर भी बैटल लड़े होते हो उधर। Constantly ये बेचारे लड़ी जा रहे हैं। And that does have an effect. I think the only thing that the Pakistani state has tried to control more than speech, and by the state I do not just mean the riyasat, I mean the mullah establishment as well. More than free speech, they've tried to control sexual desire. ये नहीं जानते हुए कि चलो अगर हमने लोगों को मॉरल गाइडेंस दे दी है, एथिकल गाइडेंस दे दी, तो आगे उनका अपना काम है कि वो उसको कैसे अपनी जिंदगी में वर्क इन करते हैं। नहीं, आपने शलवारों में घुसना है, आपने पतलूनों में घुसना है, आपने लोगों के बिस्तरों में जरूर घुसना है। Yeah, and plus I would say wasn't also like मुजरा part of our culture in like अगर आप पहले जैसे इलामा इकबाल was a big fan of going to isn't that true, like पहले मुजरा होता था partitions पहले, it wasn't considered like a vulgar thing, and it wasn't this it was obviously it was very silly, or you know it was like I also want to talk about, and I want to also come to, you said you didn't transition into a woman, so tell a little bit about that, because I think there's a lot of like, so when I assume कि you know अगर transition हुई है
it will probably be, now it's woman. Yeah, a because vagina. A vagina, or even if it's not, I know that it's not, this person identifies as a woman. Yeah. Is there a difference? There is definitely Identifying a difference. as a woman or having a vagina or having a surgery which the sex change operation bhi hota hai. Yeah. So yeah, I want to know think because I don't very, have very different. I think Khwaja Sarai is a very specific identity. And it's a not woman identity. यानी कि we do not, because the Khwaja Sarai community in Pakistan, जिसको हिजड़ा community या किन्नर community कहते हैं, अभी सुष्मिता सेन का ताली उस पे बना है, 6 episodes का drama. We do not identify as women because देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी तीसरी धुन भी था एक. Exactly. Yes. तीसरी धुन भी उसी के ऊपर based था because we Khwaja Sarais have had a distinct cultural identity as the third gender, which the Jamaat Islami now wants to eliminate. And उस distinct gender But identity gender तो का बहुत ज़्यादा, it's always been there in Pakistan. Yeah. It's been before Pakistan. precisely, and they don't identify as women. हमारी एक बड़ी spiritual definition होती है yeah. gender की. It's a very spiritual definition. वो रूहानियत के साथ linked है. ठीक है. कि हमारी रूह जनाना है. रूह भी औरत की है नहीं कहते हम कभी भी. ये नहीं कि हमारी रूह औरत है. We never use the word औरत for ourselves. वरना we could have asked for it, right? Yeah. We could have gone the Iran way. जो उन्होंने the Iran way was Iran के अंदर ख्वाजा सरा नहीं होते. Iran के अंदर there is no third gender identity. So you have to identify as a woman or a man. The government allows it. You go get your surgeries done. And the surgery done का basically concept यही है कि you need to have a vagina. So you have to have a surgery. You have to have a surgery done. वरना नहीं. Yeah. वरना आप अपनी जाएंगे, आप अपनी vagina बनवा के आएंगी और उसके बाद अगर पहले से है तो well and good. अगर कुछ की होती भी है क्योंकि like there are a lot of intersex people who already have a blind vagina. It's like a smaller one. It's like basically just 1 inch deep or even less than that. And then there is a technique called the Davidoff method, which is used to deepen it further. So that it can be pleasureful and it can result in conducive sexual relationships if you do a halal marriage. Because वो in Islam, so all sex is through marriage. And there's obviously debate in इसी के अंदर about testosterone और वो जो नहीं, none of that. Because testosterone तो सब में होती है, लड़कियों में भी होती है. टेस्टोस्टेरोन के बगैर तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी ना. एड्रिनल ग्लैंड्स तो आपके रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन. So ये जो एक होता है कि now this person is transforming, then they are prescribed some drugs that they now need to start taking ताकि ये build up होना शुरू हो जाए और XYZ. What's that? That's hormones. और वो hormones आपको इसलिए दिए जाते हैं because या तो आपकी बॉडी में पहले hormones थे नहीं, या आपकी बॉडी में hormones out of whack थे, out of balance थे, या आपकी बॉडी में transition की वजह से आपके जो core hormones थे उनको block कर दिया गया या remove कर दिया गया. Because the physical features and the mental features that they were resulting in were bad for you. They were unhealthy for you. अब वो जब हटा दिए तो हार्मोन्स तो देने हैं ना. बिकॉज अगर हार्मोन्स नहीं देंगे तो आपकी बोन हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी मसल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ डिस्टर्ब होगी. सो इट इज दैट, एंड थ्रू दैट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कम एज वेल. सो फॉर इंस्टेंस लाइक लुक एट मी, दिस इज जस्ट 1 year of hormones, which means my body really was thirsty for hormones. उसके अंदर आपने थोड़े से डालने और ये boom, the woman comes out. It was already ready for those hormones. Did I want it? That is another question. So अब ये वाली सारी बात आती है डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर पेशेंट क्लाइंट के रिलेशनशिप्स के ऊपर कि डॉक्टर के पास पेशेंट की नीड्स के साथ जा रहा है. If I as a patient go to a doctor and say that listen up, I am very unhappy with my body, I look at the mirror and I can't look in the mirror, I'm going to kill myself, मेरी mental health disturb हो रही है, मैं function नहीं कर सक रही हूँ बिल्कुल, this is not how I want to be. I have boobs and I don't want boobs because they make me look like a woman and I am not one. I know in my head that I am not one. मेरे ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया. जैसे हमारा यहाँ रूह की फीलिंग है, वही बात है. उसको हमारे यहाँ रूहानियत के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है. उसको बायोमेडिकल सेक्युलर साइंसेस के अंदर जेंडर आइडेंटिटी के तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है. और जेंडर आइडेंटिटी हर इंसान की होती है और वो आपके दिमाग में होती है और उसके कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स है which plays into it, and a lot of those factors are basically decided when you are in the mother's womb. अभी आप पैदा भी नहीं हुए होते तो वूम के अंदर क्या हार्मोन्स मौजूद हैं उनसे आपके दिमाग की एक सर्टेन जेंडर मेकअप आपका डिटरमिन आपका हो जाता है. साइंस इज वेरी मच प्रूवन दैट. So if I go to the doctor and my goal is body, my goal is physical, then he will still prescribe me hormones or she will still prescribe me hormones, but those hormones will be tightened. उसकी डोजेज यूं एडजस्ट की जाएगी ताकि मेरे बॉडी गोल्स अचीव हो सकें. I never went for body goals. Because I never had body dysmorphia. Why I say I do not identify as a woman is because I actually grew up without a gender identity. It was so confusing for me कि I was like, अच्छा okay, लड़का बनना होता है. You have to act. Maleness is not biological. Maleness is not social. Maleness is just something that you have to act. So I acted like a man, and then I took testosterone for 3 years. Okay. Between 2011 to 2012 to 2015. I guess मैं भूल गई हूँ. Something along that time. वो 2011-12 में शुरू की थी, 3rd year के end में स्टार्ट की थी मैंने अपने MBBS का.
So I took that, and that's why I sprouted all the beard and everything. मेरी उससे पहले की भी तस्वीर सारी मौजूद हैं. Everybody has seen me. Like I was tall, I was lanky, typical slender body, no body hair, no boobage, no nothing. And I was very comfortable with not having boobs, like I said, because in that environment, if I had boobs also, फिर तो मेरी बात जाननी थी. You were just, yeah. फिर तो I was gone. फिर तो कुछ रहता ही ना. But that decision was still based on how the society was, society perception पे based था. यार smart decision था, I guess. Smart, okay. I guess we live in a patriarchal society, and if you're a blank canvas, and you know that everybody is either a pink or a blue, and you know that blue has more power, and you're suddenly given a choice, okay, which one would you choose pragmatically? And I chose pragmatically. I did not choose with my heart or with my gut. I literally went with my mind, and I do think I shouldn't have done that because it really ruined my health. Okay. It caused me a lot of hormonal issues. I mean, जब अल्लाह ने एक चीज़ नहीं बनाई हुई मेरी बॉडी के अंदर तो नहीं बनाई हुई. वो जब नहीं है उधर तो वहाँ पे वो नहीं है. वो जब ज़बरदस्ती मैंने डाली तो मुझे मज़ा बड़ा आया पहला साल. I sprouted a beard. मेरी आवाज़ cracked. You know, it became that like husky throaty voice. Yeah. I became like a hot dude. And I was like, oh wow, finally. Oh my god. मुझे लड़कियों ने बड़ी लाइनें कराई. This is what the fuss is about. मुझे गेज ने बहुत लाइनें कराई. And I was very happy. I was like, ये चीज़ बहुत मजा आया. And then 1 year into it, I was like, अच्छा okay, my mind is collapsing. मुझे कुछ हो रहा है. Because testosterone, अच्छा मैं वो वाली feminist नहीं हूँ जो believe करती है कि gender exist नहीं करता. नहीं, hormones का असर होता है. आपकी psychology पे असर होता है. I categorically remember myself on testosterone. It was a very different psychology. It was a very different way of being. Like वो does करके दिमाग में जाके वजती है यूं करके. It's like you're always like, oh, कुछ करना है, उठो. All of that, and then like horniness and all of this, and I was like 1 year I enjoyed it, and then I was like, this is, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है. My like what is going on? I was just very confused, and then we started tapering it down, and then last year I was like, अच्छा, I don't know if I should have it or not, so I just kept on having it. Sometimes I didn't have it, and I was like, yeah, no. Therapy मेरी साथ साथ चल रही थी कोई consistently. मैं 2011 से जब से मेरी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट हुई है ना, उससे 4 महीने पहले से मेरी वेरी गुड साइकोथेरेपी स्टार्ट हो गई हुई थी. सो वो मेरी कंसिस्टेंटली चलती आई है अब तक 2023 तक. एंड दैट्स व्हेन आई मेड द डिसीजन कि अच्छा नहीं. एंड माय थेरेपिस्ट सेड एज वेल कि मेहरब दिस इज नो, कि तुमने लिया ये डिसीजन, मैंने तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट किया, बट नाउ द डेटा दैट यू आर गिविंग मी एंड द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग मी, डोंट यू थिंक it's not healthy for you? And I was like, yeah, this is not healthy for me. And she was like, don't you think you should stop? And I was like, yeah, I think I should stop. And then I stopped. And then I went to the US and I couldn't transition because I was going to the US on a male passport. तब ये तो नहीं कि यहाँ से मैं मोहिज जाऊँ दाढ़ी मूंछों के साथ और वहाँ से महिला जो है वो हमेशा में काट के तो वापस आंधी पे ही आ. तो ये तो हो नहीं सकता. लाइक आई मीन कम ऑन, इट्स पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरा, मुझे क्यों उठा के वो ग्वांटानामो में ना बंद कर दें. कुछ आपको अमेरिका वालों का पता नहीं चलता. तो मैंने कहा वापस आके ही करते हैं. जब तक मैं वापस पहुंची तो शुमाइला भट्टी मशहूर हो गई थी. अल्लाह. Yes, Shumaila. So I remember Shumaila Bhatti. I used to find Shumaila Bhatti very funny. Shumaila Bhatti wasn't supposed to be famous or popular. It was just my catharsis. It was a Pakistani trans woman in America missing her Pakistani culture and making funny videos for her friends. And it was a छोटा सा Facebook page with my 7 friends in it. And day 3 पे वो viral हुआ था. And I wake up and it's viral and I'm getting calls from Dawn News and the News International and all of these. We want you to give an interview for a lifestyle section. Okay, how, despite being a man, you make such funny feminine videos that all girls are saying are so relatable that they think it's coming from a woman's heart. अब मैं उसका क्या आंसर देती हूँ उधर बैठ के? I'm actually not a man. नहीं दे सकती थी. तो मैंने बड़ी एक्टिंग करके मैंने वही अपनी आवाज निकाल करके नहीं, इसमें मेरा सारा क्लास प्ले है, लाइक I am very inspired by the women of Pakistan, bro. वो मैंने सारी गेम चलाई वहाँ पे. अब मैं जब वापस मैं तो फंस गई हूँ कि अल्लाह अब मैं क्या करूँ, अब मैं फंस गई हूँ. लेकिन I came back and I had made up my mind, so I told my family कि अम्मा बाप देख लें, आप लोगों को तो पता ही है, तो होना ही है, तो जरा आप मैं वक्त लगा के स्लोली स्टेडली जरा मैं 1-2 साल जरा डाई डाउन करा दूँ, अपनी मेल इमेज थोड़ी बहुत कम करा दूँ, जरा सी पुदीना चटनी लोग देख लें, जरा सी मेरी फेमिनिटी लोग और देख लें, उनको अंदाजा हो जाए कि मर्द नहीं है. लोगों को फिर भी अंदाजा नहीं हुआ, वो और कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गए कि वाह 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 इतना प्यारा लड़का, हाय हाय इसमें तो नजाकत भी है, ये तो टॉक्सिक भी नहीं है. Like women have harassed me so much in this country, and now actually I do want to open up about it because we always talk about how guys harass women. No man has ever harassed me as a public figure in this country, and I'm not saying men are good और ये harassment होती नहीं है, झूठ है, होती, मैं अपना experience बता रही हूँ. Literally a few months ago, on the red carpet, while I was surrounded by my trans friends at a public event,
where I was performing alongside other performers, this woman walks up to me drunk, I guess. I don't know. No, I don't think she was drunk. Basically, she just walks up to me and she demands in front of everybody that I kiss her on the lips. What? And I'm like, what? Are you all right? Are you... प्लस मुझे ऑटिज्म है तो मैं तो ना मेंटली जरा वो हो जाती हूँ, अनहिंज हो जाती हूँ थोड़ी सी डांस करके, तो बिल्कुल बहुत ही अनहोनी किस्म की। और वो खड़ी रही 10 मिनट तक और मुझे आखिर में कहती कि तुम जितनी प्यारी लड़की बन जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा एक हॉट लड़के ही रहोगे। That's a weird thing to say. It's like a... I mean, what sexuality is this? Like, it's confusing. And मैं ये कहती हूँ, अगर ये कोई मर्द होता जिसने आके मुझे कहा होता, उसको मैंने जेल में बंद करवाया हुआ था अभी। अब बाद में मैंने like I did a live on this as well, and this has happened quite a lot. A lot of women have done this. And एक तरफ मैं empathize कर सकती हूँ कि the loss of Moise, because Moise was a public figure too, right? I get it. I totally get it. I miss him too sometimes. My family misses him too sometimes. My friends miss him too sometimes. Of course, it was a personhood. पूरी की पूरी वो एक चीज थी। लेकिन आपने खुद बीबी जी ने घर में बैठ के जो बाकी 6 मर्दों को सेक्सुअलाइज कर रही हैं पाकिस्तान के, वहाज अली समेत, आपने एक मोइस को भी सेक्सुअलाइज किया हुआ है, अली सेठी को भी सेक्सुअलाइज किया हुआ है, और सडनली न्यूज ब्रेक होती है और आपको एहसास होता है कि ओ दीज मैन आर आउट ऑफ माय सेक्सुअल ब्रैकेट। तो आप अपनी उस लॉस को और अपने ग्रीफ को आप समझ नहीं पाती हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते, और ला के सारे का सारा मलबा हमारे ऊपर थूकते हैं। दैट इज वेरी परवर्टेड। आई डू थिंक पाकिस्तानी women are very perverted, very perverted. Interesting. That's it. या पाकिस्तानी मैन आर परवर्टेड, मगर पाकिस्तानी मैन की परवर्जन सामने है। वो अपनी परवर्जन खुल के मुंह पे बोलते हैं। पाँव की तस्वीर चाहिए तो चाहिए, चिक विद अ डिक चाहिए तो चाहिए, मुंह पे बोलते हैं कि जी हमें पसंद है, सानू नहीं फर्क पैंदा। महक मलिक की जाके फॉलोअर्स देखे ना कितने हैं। लाइक वी ट्रांस वुमेन आर लिविंग व्हेन इट कम्स टू रोमांस एंड डेटिंग इन पाकिस्तान। हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। No issues whatsoever other than violence, which does happen on women who perform, जिनका performance industry के साथ ताल्लुक है। But I mean, look at us. Swear to God, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत चिकनी हूँ, but I mean, just babe, just like look at us. We are hot women in the Pakistani context, and Pakistani men are drop dead gorgeous. I would like to say that. I think Pakistani men are the hottest men in the world. So मजे का सीन चल रहा है वहाँ पे, हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं हो रहा। परवर्जन्स हैं वो हम डील कर लेती हैं, जब नहीं कर सकती पुलिस के पास जाती हैं, जब वो भी नहीं कर सकती फिर एहतजाज निकालती हैं। औरतों की परवर्जन जो कि सबसे ज्यादा छुपी हुई है, जो कि निकल के ही सामने आई है ट्रांस वुमेन के केस के अंदर, क्योंकि हम उनसे नीचे है ना, पावर है ना। परवर्जन क्या है? परवर्जन आप उस पे एक्ट आउट करते हो जो कि आपसे नीचे होता है। मेन कैन डू इट ऑन किड्स, वुमेन, गर्ल्स, ट्रांस वुमेन, बिकॉज वो जेंडर टोटम पोल पे उनसे नीचे है। वुमेन से नीचे कौन है? ट्रांस वुमेन। We are the newest women on the totem pole ना, जो सबसे नीचे वाली होती है। But I'm trying to figure, is it because these women think you are taking their place, or what place? वही मैं कह रहा हूँ ना, what's their reasoning? We are not even eligible it for just women's की reserved seats. Yeah, so what's the reasoning? We are not going into women's toilets. हमारा law state करता है कि public places में transgender women के लिए separate toilets बनाए जाए। Like at airports, I use the one जो कि disabled people वाला होता है। And once I've used the women's toilet, and it was early in the morning, मेरी पहली फ्लाइट थी, where I went and बड़े डरते डरते कि क्या होगा, मैं जल्दी से भाग के मैंने पिछली को मैं जल्दी से भाई मैं कल मेकअप करूँ, लिपस्टिक फ्रेश कर लूँ, और इतने में a few women came in, and then they all saw me, and I think they recognized me, and all of them came and made a hujum around me कि we love you, हमें मेकअप टिप्स दें, और ये मेरा बच्चा है, इसके सर पे हाथ रख के दुआ करें। वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, कोई मसला मैं जल्दी मैंने किया, मैं भाग के वहां से चली गई। ठीक है। मैंने इस हुलिये में मेंस टॉयलेट भी यूज किया था। सही है। बिकॉज व्हेन आई डोंट वांट टू क्रिएट, जब मुझे नहीं है सिर्फ लिटरली मर्दों का और औरतों का मौजूद है और मैं ट्रैवल कर रही हूँ मोटरवे के ऊपर, आई विल गो इनटू द मेंस वन। ओके। और होते हो आती है कि नहीं मैडम आप प्लीज लेडीज वाले टॉयलेट में जाएं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार मैं लेडीज हुई नहीं, मैं ख्वाजा सना हूँ, ये लो मेरा शनाख्ती कार्ड। तो फिर कहते हैं कि मैडम प्लीज मैम, वो आया आ जाती है खला के अंदर मसला हो जाएगा, आप प्लीज आप औरतों वाले बाथरूम में आ जाए, अंदर कोई भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ जब आप कह रहे हैं तो आ जाती हूँ। सो व्हाट प्लेस आर वी टेकिंग? नो वी आर नॉट टेकिंग एनी प्लेस। ये एक्चुअली इनकी परवर्जन है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, इनकी परवर्जन है। अ लॉट ऑफ वुमेन आर आल्सो अट्रैक्टेड टू फेमिनिन गाइज, कोट एंड कोट। उनको लगता है कि इनसे में वायलेंस वगैरह का डर नहीं है, और उनको लग रहा है कि हाई ये वाले भी अब चले गए हैं, प्यारे वाले गे हो गए हैं सारे, जो अच्छी वाली थी वो ट्रांस बन गई हैं। इनको ये लग रहा है कि लड़के तो सारे के सारे जा रहे हैं, और जो फिर पीछे रह गए हैं खूबसूरत हैंडसम, वो आपके पास लाहौर की गोल्डन बालों वाली इन्फ्लुएंसर्स चुरा रही हैं। सो ये जो मेंटालिटी ऑफ स्कैरसिटी है ना औरतों की इस वक्त, जो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का वजूद एक मर्द के साथ उन्होंने मुंसलिक किया हुआ है कि मर्द होगा तो हम होंगे, और मर्द मार्केट के अंदर बड़ा शॉर्ट है शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है। ये शुमाइला भट्टी की पूरी वीडियोस इसी साइकोलॉजी पे तो बेस्ड थी कि लड़के नहीं मिलते।
और वो तभी इतनी हिट थी. That is it. I was just satirizing a very core psychological thing that I had unlocked in the Pakistani woman psyche. और ये trans women की भी psyche है by the way. वैसे पाकिस्तानी women अकेली नहीं है. Trans women की भी exactly यही psyche है. हमने पाकिस्तान में जनजात के वजूद को जोड़ा वही मर्द के साथ है. वो they can't imagine a life of independence. They want a man to change their गाड़ी का टायर. भाई क्यों तुम्हें टायर क्यों तब्दील तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तुम्हें क्या मौत पड़ती है? मियाँ को गाड़ी के काम बहुत अच्छा है, 2-4 इंजन की बात है, तुम भी सीख लो. कोई मसला तो नहीं है. जरूरी तो नहीं है कि आपने ये बस एक ड्यूटी लगा ही दी है कि ये किसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि गाड़ी का काम कराना मर्द की जिम्मेदारी और औरत ये वाले काम नहीं. हल्का फुल्का सीख जाओ, कोई तुम्हें आफत नहीं आ जाएगी. सो नहीं, मैं ये समझती हूँ कि ये औरतों की परवर्जन है. और मुझे ज्यादा इसके बारे में इतना पता नहीं है. आई हैवंट स्टडीड इट बिकॉज आई एम अ रिसर्चर, बट आई एक्चुअली हैवंट रिसर्च्ड cis women sexuality. I've researched men's sexuality, I've researched men's gender norms, I've researched masculinities, I've researched quite a lot on trans issues. I've never researched on cis women's issues, so maybe women can comment on it, but I do want to make this point very clear that women are also very perverted, and transphobic women are the biggest perverts out there. शदीद किस्म की perverted होते हैं ये. That's interesting. That's because one would assume कि आदमी होंगे, but one thing also you were mentioning about, you were saying ये trolls वगैरह और सारा कुछ. I also want to know how do you deal with it, and how even like I know you right now you're very chill about it, and हम भी मजाक उड़ाते हैं ये trolls वगैरह का, but how do you generally deal? Is it like you just don't give a shit, or how does you manage that? Because I'm sure trolls are a thing, and with you becoming even more popular, that only increases. Yeah. So, एक तो very simple, neutral, rational explanation है of the fame cycle. There's a whole cycle of fame that you follow, which is very true for feminine people. I won't just say females, because I think trans women के साथ भी ये वाला attitude होता है. Meet out जो किया जाता है, उसमें तो आपको पता है कि like okay, there's an initial stage आपकी, फिर एक आपकी niche audience बनती है. niche के बाद जब जैसी जरा सी आपकी mainstream audience जाती है, तो people come like, oh yeah, we love her, we love everything about her, and then suddenly the next stage 3 comes, just like, oh, we hate her, we hate everything about her, and then people just get bored of the hatred, and then you assimilate somewhere in the natural environment. I mean, आप Anne Hathaway को देखें तो Anne Hathaway के साथ भी यही हुआ है. Malala Yousafzai is a very prime example. उसके साथ किस तरीके से हुआ. So एक तो वो है, I understand where this hatred is coming from, where all of this trolling is coming from. दूसरा, I also feel not bad, but I understand where the trolls are coming from in some of the cases, because I am not a pop culture person, I'm a counterculture person. Okay. और counterculture is supposed to be a little abrasive, which is why it's supposed to be niche. कि जिन लोगों ने देखना, जिन लोगों की मर्जी का है, वो लोग आके देख रहे हैं. आपको तो बीच में वरने की घुसने की जरूरत नहीं है. सो बारहा जो मेरा कंटेंट निकाल के पोस्ट किया गया है, एडिट करके, उसकी स्मॉल स्निपेट्स निकाल के, अक्सर का डॉक्टर करके भी, किसी चीज के पीछे कोई और आवाज डाल दी, उर्दू में लिखा होता है, उर्दू में और समथिंग लाइक उस पे कुछ एक रेड सा लिखा होता है. सो इट्स बेसिकली देयर फॉल्ट. आई मीन, आपको अगर मैं आपको इतना ही बड़ा फितना लग रही हूँ और आपको लग रहा है मैं इतनी ही गलत बातें कर रही हूँ, तो आपको किसने कहा कि आप मेरी चीजें बार बार निकाल के रीपोस्ट करें? एंड दैट्स व्हाट ब्रॉट ऑल ऑफ दीस पीपल इन, व्हिच आई काइंड ऑफ गेट. आई मीन, पाकिस्तान की कुछ ऑडियंस का भी वैनिला ऑडियंस है. They can't really take a conversation that is super candid, that is on topics that they have learned to like somehow like हाय नहीं, वो घोड़े की तरह आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, बट अगर सुन भी लिया कुछ तो पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा. तो भाई, well and good, stay in your bubble. Why are you coming into our bubble? लेकिन it does get to you. And I'm not even going to talk about the mental health aspect and the soft aspects of it, because चलो वो soft aspects भी hard aspects नहीं हैं, but the hardcore aspects of it is वीडियो कैमरे लेकर लोगों को हरास करना शुरू कर देना. लाइक आई हैव अ सिस्टर हु लिव्स अब्रॉड, द इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि इनका इस्लामिस्ट का चैप्टर है, इसना वालों का. उन्होंने मेरी बहन को हरास किया वहाँ पे, इतना हरास किया एक दफा कि शी वाज ऑन द हाईवे एंड शी ब्रोक डाउन, शी हैड टू स्टॉप हर कार, या एंड देन शी कॉल्ड अम्मा अब्बा कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, शुड आई जस्ट गो एंड गिव अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज मुझे ये वाला डर लग रहा है कि इसको मार देंगे, मेरे को घर में मार देंगे पीछे पाकिस्तान में लोग, तो मुझे लग रहा है मुझे जाके फॉल्स स्टेटमेंट देनी पड़ेगी किसी किस्म की. एंड देन अम्मा अब्बा स्टॉप्ड हर, एंड देन अम्मा अब्बा को तंग किया बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे वर इन एबटाबाद, और अब्बा को पर्टिकुलरली उनके पीछे वीडियो कैमरास लेके पहुंच गए कि हमें टेस्टिमनी दें कि ये जो आपका बच्चा है ये बायोलॉजिकली मेल है. एंड अब्बा वाज लाइक, मैं क्यों दूं जबकि वो नहीं है. एंड द होल पॉइंट इज कि आपको खुद, सबसे पहले आपने खुद एक नेशनल डिबेट स्टार्ट की ऑन माई जेनिटेलिया, something that I've never talked about ever. I talk about a lot of stuff, but I've never actually publicly spoken about what I had,
what I have now, what I got done, Yeah. did I get something done? There is nothing out there. तो आपको इतना तजस्सुस है तो आप आके बराह रास्त मुझसे पूछें. Yeah. आप मेरे 77 years old father के पास क्यों जा रहे हैं? That's fucked up. आप मेरी मैरिड सिस्टर को जाके क्यों हरास कर रहे हैं? And this is ISNA as an organization. They're doing it. या दिस इज लाइक पेशावर के अंदर एक जमात इस्लामी की खातून है, उन्होंने ये वाली हरकतें की हैं. लाइक दीज आर फनाटिक्स. हाँ. अनपढ़ लोग ये हरकतें नहीं करते. अनपढ़ लोग ये जो हमने परसेप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर के लोग जाहिल हैं, अनपढ़ है. नो, पीपल आर एक्चुअली क्वाइट स्वीट. आप गली मोहल्ले Yeah. के अंदर जाएं, आपको इज्जत से घर के अंदर बैठाया जाएगा, आपको रोटी पानी खिलाई जाएगी. ये वाला मसला पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके का ही है. ये जो अपनी तरफ से एक मॉरल सुपीरियॉरिटी ये क्लेम कर लेते हैं ना कि नहीं हमने तालीम भी हासिल कर ली है, हम तो अमेरिका भी आ गए हैं, हमने तो अमेरिका आके भी अपने हिजाब नहीं उतारे. अपनी बच्चियों और बच्चों को हम लोगों ने मेल्स और इस्लामिक स्कूल्स के अंदर डाला है, उनको डेट नहीं करने दिया. 19 साल की उम्र में जबरदस्ती पकड़ दी, कजनों के साथ शादियां कराई हुई हैं. तो वाह 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 वाह, हमसे बड़ा प्रोटेक्टर ऑफ फेथ एंड रिलीजन तो कोई भी नहीं है. वेल गेस व्हाट, कुडोस टू यू. और वो सारे बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हैं. Whatever, kudos to you. None of that gives you supremacy or hegemony over me, my body, my culture, my expression. None of it. None of it gives you the permission to pick up video cameras and step into my household asking my family about my genitalia. Come ask me about it. और अगर ऑनेस्टली थी तमीज से आके इन लोगों ने बात कर दी होती, मैंने इनको दिखा भी देनी थी अपनी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्टें, उन्होंने शायद मुतमईन भी हो जाना था. लेकिन I do not want to play into that Why politics. should you have to? Why should Because you? why should I have Yeah, to? like that. मैंने तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा. Yeah. I haven't gone and asked Maria भी कि मुझे अपने बच्चों का DNA टेस्ट करके दिखाओ कि तुम्हारे खावन से हैं किसी और से हैं. It's literally the same thing. मैंने तो जाके राजा ज़ियाउल्लह को नहीं बोला You should ask though. You should ask man. कि मुझे अपनी शलवार उतार के दिखाओ. What's your size? Let me measure it. Yeah. Do you qualify on a scale of Pakistani manhood or not? Because I'm sorry if you're shorter than 5, then I don't consider you a man. I mean, what is this ridiculous argument? ये जो सारा खड़ा किया हुआ है. So that really bothered me. Like, come at me if you have to. And about genitalia, like, none of this bothers me. Honestly speaking, because I know what my reality is, my family knows what my reality is, my closed ones know what my reality is, and I know that they're just converting me into a political tool for their own messaging. कि उन्होंने मेरे कंधे पर रख के उन्होंने बंदूक चलानी है. तो पहले आप दुनिया भर के अंदर ये ढंडोरा पीटो कि ये बायोलॉजिकल मैन है, ये बायोलॉजिकल मैन है जिसने ट्रांजिशन किया इनटू अ वुमन. बाय द वे, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लिटरली नथिंग रॉन्ग विद दैट. ऑल साइंस सपोर्ट्स इट, ऑल जिसे कहते हैं एक रैशनल थिंकिंग सपोर्ट्स इट. But that is not even my story. Like, hello. Like, why are you even pinning it on me? A, I was never a biological man. B, I have not transitioned into a woman. Because I can't Okay. even claim that identity in Pakistan. हमें तो एक्स का ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड दिया जाता है. Okay. I actually want to know more about that. Yeah. Because जहाँ तक मुझे जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि जब Yeah. आपकी CNIC वगैरह के अंदर जो हमारा एक लॉ निकला था कि you can choose whatever gender you want. No. on the- ऐसा नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. The choice is X. The choice is X. The choice is not man, not woman. Okay. ख्वाजा सरा का ही शनाख्ती कार्ड मिलेगा. You can go and identify as an Apache helicopter if you want to. You will still get a शनाख्ती card of X. And then you can't get it changed back into male and female. अच्छा, you can't. So it's a lifetime decision. इन्होंने इतने जिसे कहते हैं ना गेट कीपिंग करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने लॉ के अंदर इतनी मोटी मोटी चीजें बेक करके दी हुई हैं पहले से कि एक तो आप फीमेल में नहीं करवा सकते, आप मेल में नहीं करवा सकते, आपका चेंज होकर आपको ख्वाजा सरा का ही CNIC मिलेगा जिसका जेंडर मार्कर X होगा, एंड यू डू नॉट हैव द राइट ऑफ मैरिज. Okay. या एंड व्हिच बेसिकली You don't have a right of marriage. we don't have a right to sex because in Pakistan all sex is marriage. वरना तो ज़िना है. Yeah. वाली सारी तो भाई, और एंड वी एग्री टू ऑल ऑफ दिस कि हाँ ठीक है भाई ये सारे का सारा कर दो, एक्स का शनाख्ती कार्ड दे दो, सिविल प्रोटेक्शन सिविल लिबर्टीज तो दो. एजुकेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, हाउसिंग में नहीं है, इलेक्टोरल ऑफिस के लिए रन कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं. दैट इज इट. हरासमेंट से बचा हुआ है. और कुछ बाय द वे क्रिमिनल प्रोविजंस भी नहीं है. ये भी नहीं है कि ट्रांसफोबिया क्राइम है, हेट स्पीच क्राइम है, किसी इंसान ने कुछ बुरा भला कहा तो हम उसको जुर्म के तौर पर ट्रीट करेंगे. नहीं, आपने कच्चे पक्के से अपने NCHR को और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को बोला है कि जी आपके पास अथॉरिटी है, किसी भी ख्वाजा सरा की कोई भी कंप्लेंट होगी तो यू पीपल आर गोइंग टू एड्रेस इट. अब उनके पास क्या पावर है? वो सुओ मोटो ले सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं. दे कांट गिव एनी पेनल्टीज और एनीथिंग. सो नाम निहाद एक जिसे कहते हैं, और बड़ा कमजोर लॉ है ऑनेस्टली स्पीकिंग. हम बहुत डिफेंड करती हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट को, बट इट्स एन एक्सट्रीमली वीक लॉ. एक्सट्रीमली वीक लॉ. इट वाज जस्ट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और ये उसी पे जाके पड़ गए हैं. व्हाई? बिकॉज ए दे आर ट्रांसफोबिक. इनको जेन्युइनली मसला है कि अगर ये वाले खुसरे जो भीख मांगते थे, जो हमारी शादियों पे आके नाचते थे, ये अब डॉक्टर बन जाएंगे, हमारे साथ डिसीजन टेबल पे आके बैठेंगे, तो ओ हमारी ईगो हर्ट होगी. वेरी सेठी कल्चर ना, कि 5 मर्दों का बोर्ड है, अब उसमें किसी औरत को भी अगर बैठाना है तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है. एंड इट डज हैपन.
I've seen it happen quite. अब आपने उसमें ट्रांस पे बैठानी जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर, लेकिन वो आ सकती है. And that possibility scares them. And then number 2 is the entire spillover of the Republican push towards Muslim voters in the US. उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को रीच आउट करने के लिए, वो रेसिज्म पे तो बात कर नहीं सकते, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी पे तो बात कर नहीं सकते, तो उन्होंने जाके ना ये वाला एक इशू पकड़ा और ये गिनने चुनने आपके ऊपर का टॉप 3 काडर के आपने इस्लामिक स्कॉलर्स उठाए. यासिर कादी हो गया, इक्का दुक्का और हो गए, उनसे आपने होमोफोबिक स्टेटमेंट्स दिलवाई. व्हाई? बिकॉज यू वांट मुस्लिम पीपल टू वोट रिपब्लिकन एंड नॉट डेमोक्रेट. वेरी गुड स्ट्रैटेजी. लेकिन उस स्ट्रैटेजी का मसला क्या होता है कि जब वही वाले आपके इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक प्रीचर्स वहाँ पे वाली सारी तकारीर वगैरह कर रहे होंगे जो कि एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है, तो यहाँ वाले हमारे बैठे हुए ना उन्हीं को कॉपी करते हैं, वहाँ से वही वाला मवाद उठाते हैं, उसका उर्दू में तर्जुमा करके पेश करते हैं एज लाइक न्यू कंटेंट. और वही वाली सारी की सारी जो लॉजिक है, जो नॉर्थ अमेरिकन लॉजिक है, जो नॉर्थ अमेरिकन कंजर्वेटिव लॉजिक है, वो पाकिस्तान के अंदर आग की तरह फैल चुकी हुई है. आप मारिया बी को उठा के देख लें, और एंटायर मॉडल इज अनीता ब्रायंट एंड मार्जरी टेलर ग्रीन. She's a Zaid Hamid fan, for crying out loud. I won't be surprised. I won't tell you she's the Zaid Hamid fan. Exactly. तो अब like वो उसका political ambition है, because she's done whatever she wanted to do in life. Her next step in life is okay making it to the parliament, and okay fine. How does she want to do it while preserving her Did glamour? you see her picture, Mothers of Pakistan? I did. It was quite funny. I posted a track behind it. वो मेरे husband मुझको प्यार नहीं करते वाला सारा song, and I posted it as a reel on my Instagram. It was Getting money on the basis of criticizing Maria. me? Yeah. I wish I could. पाकिस्तान में तो monetization है ही नहीं Instagram में. But I would love to. Why not? I mean, trash content ही बनाना है तो I can. What do I have to do? Pick up 3 of her videos and anatomize them, just on the look. I mean that eyeliner. Oh my god. Has Maria B ever like do you? Has Maria B ever tried to get in touch with you personally? Because No. I feel like I don't get it why there is so much hatred. Like what she just there is like when you speak or when she speaks against you, it's with like this this passion. She's like I do not like this person. There's like She is convinced. Somebody from within the industry, and I know who, I'm not going to name them, have convinced them that Mehrab is out there for your husband and my husband. And I'm like, I'm not. I'm sorry, not even my type. With all due respect, but like, good for you. I don't. No. Have you looked at my CV? Have you looked at like just the pictures of my exes? अच्छा, ये मैं अपनी इस वाली बातें बड़ी प्राउड हूँ. ये बेचारे कितने पागलों की तरह पड़े रहे हैं, क्या क्या निकाल के बातें मेरे ऊपर बनाते रहे. There is a YouTube video on me which analyzes my tattoos to prove a point that I am Illuminati and a Freemason agent in Pakistan. Yeah, this is an inverted triangle. This is for me. उन्होंने बनाया कि नहीं ये ट्रायंगल है और ये डॉलर के ऊपर भी है और ये No way. डैन ब्राउन की किताब में इसका जिक्र था. तो ये जो मेहरब मोइज़वान है ये अमेरिकन एजेंट, फ्रीमेसनरी लॉबी, व्हाट द फक इज इवन फ्रीमेसनरी, और ये इल्यूमिनाटी एजेंडे के ऊपर यहाँ पे उतारी गई है. लेकिन मेरी जान इतनी मेरी तमाम बेहूदगी वादी मेरा एक बॉयफ्रेंड आज तक लीक आउट नहीं कर सका. अच्छा, मजे की बात है, फ्री मेसन पे वो कह तो रहे हैं बट फ्री मेसन एक एक्चुअल सोसाइटी भी होती थी और उसके बहुत लोग मेंबर्स भी थे. लाइक हाँ, उस पे अब कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि पावर और वो सारा कुछ, बट इट्स लाइक व्हाट वर दे? इट्स अब तो बात नहीं कि दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल, बट बेसिकली एज पर व्हाट आई नो कि फ्री मेसन के क्लब्स भी होते थे. फ्री मेसन पे बेसिकली आप मेंबरशिप ले सकते थे एंड यू वर लाइक इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड डिस्कस अबाउट कि मुल्क में क्या हो रहा है. नॉट नेसेसरली कि दे हैड पावर और दे वर एक्चुअली डूइंग स्टफ, बट ऑब्वियसली एक ग्रुप समझो, एक क्लब है, बहुत लोग गोल्फ खेलते हैं इकट्ठे एंड दे आर ऑल वेरी इन्फ्लुएंशियल. श्योर दे डिस्कस थिंग्स, कभी पर हो भी जाता होगा. लाइक मदर्स ऑफ पाकिस्तान. मदर्स ऑफ पाकिस्तान, मदर्स, देयर वी गो, एग्जैक्टली. कि वो बैठे हुए हैं कुछ लोग और वो ट्राई करें कि कुछ हम कुछ करें, कुछ आपस में इन्फ्लुएंशियल दोस्त भी बैठ के यार हमने इस बंदे को डिस्ट्रॉय करना है, वो करना है. It's literally this, but there is no formal कि यार ये फ्री मेसन थे, ये जो अभी भी कहते हैं डार्क शेडोज में रहते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल करते हैं. आई एम श्योर देयर आर पावर ग्रुप्स, बट आई डोंट थिंक देयर इज एन एक्चुअल लाइक अ कोई सोसाइटी है जो डार्क शेडोज में रहती है. And the irony is I don't even know about it. हाँ, like I've read all Dan Brown books, but I did not like the Da Vinci Code. I mentally checked out, I think midway through. So मुझे वो Priory of Sign की थोड़ी बहुत समझ आई थी, but that was linked with Jesus and Mary Magdalene, right?
वो वाली कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है इनकी। अच्छा, द सेकंड वन वाज एंजल्स एंड डीमंस, जिसके अंदर ये इल्यूमिनाटी एंड फ्रीमेसन्स हैं। आई लव दैट बुक बट ओनली फॉर द ड्रामा, कि वो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड एंड ऑल। फ्रीमेसन्स तो मुझे याद भी नहीं है। आई रियली लाइक डिसेप्शन पॉइंट, वो मुझे मजे की लगी थी। अंटार्कटिका वगैरह के अंदर सेट थी एंड ऑल। एंड लाइक ये किताबें पढ़ने के बावजूद मुझे भी नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या, फ्रीमेसन्स क्या, और मुझे कहा जा रहा है कि आप हैं, तो मैं यूँ होती है ये है क्या, पहले मुझे ये तो बताओ ताकि मैं बता सकूँ वेदर आई अलाइन विद देम और नॉट। बट दीस आर लाइक ridiculous people. So Maria B, I mean, I feel bad for her. Why do you have to feel so insecure? I mean, your kids are my age. I also feel it's a lot of it has to do with her seeking attention, to be more popular, to be stay relevant. Yeah. Like I don't know Maria B as a designer, कपड़े से कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेते हैं लोग, नहीं लेते. But I think maybe all this has probably helped her. जो उसकी एक ऑडियंस होगी वो लेती होगी उसके, यार अब ये तो देखो मदर ऑफ पाकिस्तान है. अच्छा नहीं, वो तो एक्चुअली उस पर तो एनालिसिस हो चुकी भी है. लाइक शी यूज्ड टू बी अ गुड डिजाइनर अपैरेंटली बैक इन द डे व्हेन देयर वर वेरी फ्यू डिजाइनर्स, लाइक नाम था उसका. बट नाउ लाइक माइकल कोर्स शी स्लिप्ड डाउन, लाइक फ्रॉम क्लास A शी इज नाउ शिफ्टेड टू क्लास C. अब वॉलमार्ट भी बड़ी होती है. या एग्जैक्टली, शी इज टर्निंग मोर इनटू अ वॉलमार्ट ऑफ फैशन. एंड उसमें अब उसको लग रहा है कि अब मैं वो बॉडी पॉजिटिविटी और कलर इक्वालिटी ये वाली चीज़ें पुश कर नहीं सकती. अभी उस बीबी ने मेरे ख्याल से कोई तुर्की से गोरी चिट्टी बंदियाँ मिला के, वाइट वुमेन सस्ती वाली नहीं होती वो जो गोरियाँ मिलती हैं आपको किराए पे मॉडलिंग करने के लिए, वो जो इंडियन मूवी से पीछे बैकग्राउंड वो वाली किराए वाली की गोरियाँ मंगवा के तो उसने वो मेरे ख्याल से अस्तगफुरुल्लाह कब्रों पे नचवाई हैं. और वो जिनकी थी, जिनकी वो एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड थी, दे बेसिकली कॉल्ड हर आउट. Wait, what? When did this happen? Literally a few weeks ago. Okay. Stormed models into a graveyard, into like a shrine, like an ancestral graveyard in Bahawalpur or somewhere. और वहाँ पे graves की markings हैं, ऊपर drone shots ली हुई हैं, वहाँ पे खड़ी करके models नचवा रही है. To which he also, tendered an apology later. And सर क्यों मैंने तो नहीं किया है, तो किसी और ने किया है, तो उनकी क्रिएटिव एजेंसी वालों की बेसिकली. लेकिन आपकी अपनी औकात ही है कि आप किराए की गोरियां लाके नचवाते हो कब्रों के ऊपर पाकिस्तान की, और बैठ के हमें लेक्चर देते हो कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के कल्चर के. तुम हो कौन बीबी? मदर ऑफ पाकिस्तान. Very insecure about her marital relationship still. Right on brand actually. Very mother of Pakistan. Mother of Pakistan. There we go. Insecure, petty, and loves to gossip about people's genitalia. So there's a comedian Natalia. Yeah. So Natalia मेरे साथ play में जो मैं play बता था, Natalia was with me in that play too. और उसका एक इंसिडेंट है, that's why I know it, कि उसने कोई I think she made a Sindhi joke. She basically said that I am Sindhi. And she is Sindhi. Now Natalia is a Kattar Sindhan. Okay. And said which basically means that I'm hairy and horny. That's it. हाँ कुछ इस तरह. And then it became a huge issue. Every लोंडो ने पकड़ के लपाटर करके तो उसको फजूल में उन्होंने just wanted to attack her. फजूल भी उसके पीछे वो पड़ गए, बदतमीजी करने लग गए वो उसके साथ. अच्छा नॉर्मल लोग थे, it wasn't कि कोई सिंधी कोई फैमिलीज ऑफेंड हो गई थी. यार वो भी इवेंचुअली देखो ना, बात वो यही होती है कि आपके कोर कंटेंट को कोई क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करेगा, फिर फैल जाती है बात. वो बस वो एक बात बना दी जाती है और वो बात फैला दी जाती है, और फिर सारी उसी बात के पीछे इसने सिंधियों के खिलाफ बोला. अब वो रेगुलर फैमिलीज जिन्होंने कभी अडल्ट कॉमेडी देखी भी नहीं है ना, वो देखना पसंद करती हैं. वो सुबह उठती हैं, बच्चों के नाश्ते बनाती हैं, बच्चों को स्कूल लेकर जाती हैं, स्कूल से लेकर आती हैं, 2-3 महीने में एक शादी अटेंड कर लेती हैं, साल में एक कवाली नाइट अटेंड कर लेती हैं. दैट इज द सम टोटलिटी ऑफ देयर कल्चर. उनको अब आप एक वीडियो दिखा रहे हैं ऑफ अ सिंधी गर्ल स्टैंडिंग अप विद अ माइक सेइंग दैट आई एम सिंधी, व्हिच बेसिकली मींस दैट आई एम हेरी एंड आई एम हॉर्नी. तो ये हो गया ना कि अगर एक लड़की ने कहा हॉर्नी तो है, तो ये वो जो हमारी वो जो गैस मेंटालिटी ना कि हाय ये क्या देता, जो मेरे बारे में बनाया हुआ था. जैसे मैं एक दफा लाइव कर रही थी और किसी ने नीचे आके बोला कि आपको जहन्नम की आग में जलना चाहिए, तो मैंने नीचे वो आग वाला फिल्टर ऑन कर दिया अपने इंस्टाग्राम में, वीडियो फिल्टर. मैंने बोला जहन्नम की आग में जल रही हूँ मैं, बस दैट इज इट. दैट इज अ 4 सेकंड क्लिप. और इसके ऊपर पागल हुए हैं सारे इस्लामी मौलवी, पागल हुई हुई हैं हमारी बाजियां, ये जो न्यू बॉर्न मुस्लिम बाजियां हमारी, जिनको 30 साल की उम्र जाके इस्लाम याद आ गया कि हाय 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 देखिए इसने इस्लाम के बारे में क्या कहा. बीबी खुद आप लोग मेरे आके नीचे इंस्टाग्राम पे कह रही हैं कि तुम्हें जहन्नम की आग में जलना चाहिए. मैंने फिल्टर ऑन करके जोक करा किया कि लो जहन्नम की आग में जल रही हूँ, उस पर आपकी सड़ गई है. तो बढ़ते भी हैं, फिर इनसे बर्दाश्त भी नहीं होती. भाई अगर आप एडल्ट कॉमेडी नहीं देख सकते मत देखो, तुम्हें कोर्ट नहीं है ना तो मत आओ. बात बेसिकली इनका पंगा मैं आप लोगों को बताती हूँ. चिपटे ये लोग हैं सारे के सारे. वो नहीं तो जो लोंडा होता आपकी क्लास का, चपड़ा सा बिल्कुल, ठीक है, 5 फुट 5 इंच का, एक डोला उसका नहीं होता, आवाज उसकी पतली सी होती है, जिंदगी में कभी उसको बच्ची ने घास डाली नहीं होती, और वो शहर की टॉप एकेडमी की टॉप बच्ची पे जाके हाथ रखता है कि ये वाली मुझे चाहिए, और फिर हाथ में लेके जाता है खत उसको ड्रॉप करने के लिए.
और वो जब एंटर होता है अकेडमी में और जाके डरते डरते कांपते हुए हाथों से ना खत देकर आता है अटेंडेंट को कहीं अंदर जाके जी उसको फातिमा याकूब को देके आ जाए। अब फातिमा याकूब मेरी जान चल रही है टॉप बच्ची, इसको कि LGS की बच्चियां भी उसके आगे फ्लैट है कि वो भी कुछ भी नहीं है, और साथ उसके 3-4 लड़के तो एवे ही खड़े हुए हैं। तो अब यानी कि वो आपको पकड़े आपको कुट भी लगाएंगे, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, फिर आप जाके रोगे और आप इंसेल बन जाओगे कि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत जालिम है, या उसके बारे में कोई बातें करना चाहिए, या भाई अपने आप में देखता ले तू, यानी कि आपको डर्टी कॉमेडी आपसे बर्दाश्त होती नहीं है, अडल्ट कॉमेडी आप सस्टेन कर नहीं सकते हो, ये आपकी फील्ड नहीं है, ये आपकी मार्केट नहीं है, आप इधर क्यों आ रहे हैं? आप इधर क्यों आ रहे हैं? आप इधर मत आए, आप अपनी फील्ड में रहें, आप लोग करें अपनी मजहबी काम जो आप लोगों ने करने, अपनी बोरिंग बातें करें, अपनी दावतें करें, अपनी किट्टी पार्टियां करें, फरहत इश्तियाक के नावल पढ़ें, ड्रामे देखें, सासू माँ के मसाइल डिस्कस करें, किसकी नंद का किसके साथ क्या है, किसके ससुर का किसके साथ क्या है। आप लोगों की जिंदगी के ये मसले हैं, आप लोग इन बड़ी चीजों में आने की कोशिश मत करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जेंडर पॉलिटिक्स इतना दिमाग का नाज आप लोग का है ही नहीं। आप लोग पैम्परों के रेट कंपेयर कर लें बस, कि नैपी का रेट ज्यादा हो गया तो पैम्पर का कम हो गया, तो कौन सा वाला किस तरीके से करें, तो राशन हमने किस तरीके से बैलेंस करना है, तो किसकी नूह ने किसकी तरीमत को किसकी दावत पे बुलाया था कि नहीं बुलाया था, किसने लाल जोड़ा पहना है किसने लाल जोड़ा नहीं पहना, बीबी थोड़े ए मसाइल ने। आप लोग इन पर फोकस करें, आप लोग इन चीजों में ना एडल्ट कॉमेडी वगैरह में घुसने की कोशिश ना किया करें। लीव इट टू द काउंटर कल्चर एंड स्टॉप ट्राइंग टू बी जेन ज़ी और मिलेनियल्स। यू आर नॉट, यू आर बूमर्स, फक ऑफ, स्टे इन योर बूमर लेन, वी डोंट वांट यू। अच्छा, so also like yeah, that's fine. No, I think Pakistan में commentary तो हर चीज पे करना, like I think it's like we feel it's our right. Yeah. Just talk on everything, especially boomers. But I think there's nothing else to do ना. Like if Pakistan सिर्फ वही है, like depression ही है. And depression में you just find, I think, things even on a hating side. You find things that makes this. You said Maria B. I do feel, when she even fights with you and when she starts, fighting all these things, I think she does feel she some can't kind fight of... with me anymore. How the you? वो आपने नोटिस किया हुआ है ना, वो मेरा नाम नहीं लेती है। हाँ, I think you have Zillow-fied her. नहीं, I sent her a legal notice. अच्छा, you have? Yeah, I have. And she bites by it. उसने मेरा एक दफा मारिया भी ने मेरा नाम और लिया ना, I am taking her to the courts. Oh yeah, okay. हाँ, फिर वो आए बीबी और 5 साल तक घसीटे अपने आप को यहाँ पे। Yeah. एक दफा उस बंदी ने मेरा और नाम लिया, उसने मेरे बारे में इतनी गंदी बातें, like how can you comment on my genitalia? She called me a genderless hermaphrodite. That's fucked up. That's just... Like what the hell is that? Yeah, A man with a lipstick who will get into women's toilets and start raping people. Like that is not a comment to make about someone randomly बैठ के. I think that's generally not how one should talk. Like I feel somebody who says फिर जाके अरे लगाना mother of Pakistan. I'm sorry, मतलब if you're a mother, if you associate with a name, especially in a society like this, and then you say shit like this, then sorry, मसला आप में. But you were talking about boomers commenting on things that they don't understand. Yeah. So boomers commenting on things that they don't understand, and I think part of it is also because this एक तो yes, there's general ignorance, but I feel it's this this idea. It's I think their way of staying relevant as well. वो नहीं होता अपनी जो the old way is the right way because new way also scares the shit out of them because they have not experienced it. अच्छा, यहाँ पे ना मैं जरा पाकिस्तान के बूमर माँ बाप के हक में कुछ कहना चाहूंगी. Like as a trans person, I actually understand the fear that these individuals like Mother of Pakistan are exploiting. अब आप गौर करें ना, you probably come from a well-to-do family. I do not know. I come from a middle-class family myself, but I understand those anxieties. A lot of people in Pakistan have a lot of economic anxieties. अब होता क्या है? पाकिस्तान का हमारा पेट्रियार्कल मॉडल ये है कि आप शादी करते हो ताकि आपके घर में बीवी आ जाए, वो आपके ज़नाना काम संभालेगी, कपड़े इस्त्री करके दे देगी, खाना बना के दे देगी ताकि आप दफ्तर में जाकर नौकरी करके पैसे कमा के ला सको. फिर आप लोगों ने बच्चे पैदा करने हैं, उनमें कुछ बेटियां होंगी कुछ बेटे होंगे. बेटियों की आप लोगों ने इवेंचुअली अच्छे घरों में शादियां करा देनी है ताकि नस्ल की तसलसल रहे, और बेटा आपको संभालेगा जिंदगी में कभी ना कभी. मैं कल रात को आ रही थी अभी एक मूवी का अपना एडिट करके, सुबह के टाइम इनफैक्ट, एंड माई इन ड्राइवर के जो ड्राइवर साहब थे उनका एक बेटा था, एंड very likely that he's going to pass away in a few days क्योंकि उसको stage 4 कैंसर है. And he was very sad and he was constantly talking to me about it कि मेरा एक ही बेटा था मैम, मेरा एक ही बेटा था, 13 साल का बेटा था, मेरी और कोई औलाद भी नहीं है. सो वहाँ से ना इन बातों से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आता है कि औलाद का मकसद क्या है. औलाद एक मकसद के खातिर पैदा की जाती है और मैं इस मकसद के खिलाफ नहीं हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है. हर मुल्क के अंदर ऐसे ही होता है, माशरे में ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से चलता है. अब पाकिस्तान में मसाइल बड़े चल रहे हैं, ज़मीनें महंगी हैं,
आप इतना कमा नहीं रहे हो कि आपको इतना पता हो कि मैं कोई ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे मेरा बेटा, मैं अपनी बहू ला सकता हूँ कि मेरा बेटा आ सकता है और वो यहाँ पे आके रह सकता है, अपनी वो रख सकता है, वो उसने आगे चलना है, उसने नौकरी करनी है, उसने कुछ कमाना है, तो उस नौकरी करने की खातिर आप उसको यूनिवर्सिटी में डालोगे, आप उसको पाल पोस के बड़ा करोगे, पढ़ाओगे, लेकिन अब वो डिग्री हासिल करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। कितने इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में, कितने BBA वाले अनएम्प्लॉयड है? हर कोई तो टॉपर नहीं होता ना, हर कोई तो टॉप मेडिकल कॉलेज की टॉप डिग्री पे नहीं जाएगा। डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड है। मेरी क्लास की बड़ी लाइक लड़की जिसके पास डबल स्पेशलाइजेशन है, शी हैज स्पेशलाइजेशन इन एनेस्थीसियोलॉजी and a specialization in pain medicine, and there are some total of 30 pain specialists in Pakistan. She is jobless. She is just doing a private practice. तो कहने का मकसद ये कि सारे मसाइल इतने ज्यादा हुए हैं ना कि लोग बड़े टेंस हैं अपने बच्चों को लेके कि ये पढ़ पाएंगे कि नहीं, दाखिला होगा कि नहीं, कंपटीशन बड़ा टफ है, नौकरी बाद में इनको मिलती है कि नहीं मिलती है। इसमें लाके आप एक नई एंग्जाइटी इंट्रोड्यूस करा दो कि जी ये यूनिवर्सिटियों में लड़कों से लड़कियां बन रहे हैं, तो ये तो एक और ही आपके दिमाग पे डज, और यू हैमर इट। ये इस्लामिक स्कॉलर्स, ये 10 वाली बीबियां, द पीपल दैट यू फॉलो, अब जाहिर सी बात है जो हमारी माँ है, हमारे बाप है, वो इसी तरह के लोगों को फॉलो करेंगे ना। उनको जब सोशल मीडिया हाथ में पकड़ाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है? पाकिस्तान, अपना नाम, अपने गांव का नाम और इस्लाम। तो वो जब इन लोगों को फॉलो करेंगे, वो सारे का सारा कॉपी पेस्ट रिपब्लिकन एजेंडा आपको यहाँ पे बेचेंगे कि जी लड़के लड़कियां बन गए, हम जिन्स परस्ती आ गई, लड़के गे बन गए, ये हो गया, वो हो गया, अस्तगफिरुल्लाह क्या हो जाएगा। पहले होता था कि लड़कियां पटा लेंगी, पहले ये खौफ था ना कि लड़कों को यूनिवर्सिटी भेजेंगे तो लड़कियां इनको पटा लेंगी, छोटे घरों की लड़कियां फंसा लेंगी इन्हें। लड़कियों को लेके ये टेंशन थी कि लड़के इनको फंसा लेंगे, हमारी बच्चियों की वर्जिनिटी खराब हो जाएगी, कल को उनके रिश्ते नहीं होंगे। अब आपने एक और नई एंजाइटी इंट्रोड्यूस कर दी है, एंड व्हाट पाकिस्तानी पेरेंट्स, मैं सिंपैथाइज कर सकती हूँ इस बात पे कि वो इस एंजाइटी में इतना डूबे हुए हैं कि दे इमीडिएटली जंप टू इट। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाट वी कीप ट्राइंग टेलिंग देम, दैट दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ फियर, which automatically means that you're irrational. आप एक irrational इमोशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक रैशनल तरीके से चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। जिन लोगों पे गुजर रही है, जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, उनसे सुने, दे आर द मोर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। बट दैट इज वेयर आप वाली बात आ जाती है कि नहीं हम बड़े हैं, ओल्ड वे इज द राइट वे, हमें पता है ज्यादा, हमने दुनिया देखी है, हम तुम्हें बता सकते हैं। कहते हैं अपने आप को पाकिस्तानी, इकबाल को मानने वाले हैं, मगर खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये इन्होंने कभी नहीं मानना। अली अजमत गाना बना गया इसके ऊपर, पीटीवी के ऊपर एड नौजियम आप लोगों ने चलाया बड़ी मजे की टोन के अंदर, जी खिरद को गुलामी से आजाद कर, सुना होगा आपने, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मैं सुन मानना, लेकिन आपने नहीं है। सुन ले बच्चों की भी कि उनको यूनिवर्सिटी में क्या चाहिए। कुछ नहीं हो गया, लड़के लड़कियां साथ बैठ गए बातें, कोई लड़का लड़की नहीं बना, कहीं पे भी ये नहीं हुआ। गिनी भी कोई आपके पास 6-7 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं ट्रांसजेंडर, उनका सबको पता होता है कि ये ट्रांस है। उनको देखो कोई इंप्रेस नहीं होता, घर में आके ये नहीं कोई आपको बोलता कि अम्मी जी मैं आपका बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं उसको देख के बहुत इंप्रेस हुआ हूँ और अब मैंने फैसला किया कि मैं आज से समीना हूँ। किधर से क्या कहाँ से ला रही हैं आप लोग अपनी ये फैंटेसियां जो लोग निकाल के लेकर आते हैं। तो वेयर आई कैन सिंपैथाइज विद देयर फियर, आई ऑल्सो थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि दे आर अफ्रेड और इनका फियर इज बीइंग प्लेड एंड दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दीज पीपल जो कि पाइड पाइपर की तरह अपनी बीन बजाई जा रहे हैं और ये उनको फॉलो किए जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रल take on Pakistani boomer parents. No, that makes sense. Like I feel that is essentially, I think it is fear. Yeah. I don't know if they can overcome their fear. I think that's, I guess that depends from household to household. Yeah. और as a society, I think वो तो फिर एक लंबी डिबेट है, society किधर change होगी क्या And how होगा. secure you are in your parenting. हाँ, I think वो भी how secure you are. I think also how people have also आपके कैसे, आपके बाप वगैरह भी कैसे पेरेंट्स, उनकी क्या ट्रीटमेंट, we don't know, right? उनकी भी एक सोशलाइजेशन हुई है. Yeah. और so there I think that's They have their own traumas. They have their own trauma. There's so many aspects of it. I think yeah. अच्छा, I remember you were ये जो गुरु चेला सिस्टम होता है. Yeah. And you said yeah, there are the trans women who do dance. Yeah. But the safety, I've heard a lot of incidents where like horrific incident के लोग आ जाएंगे, they will demand money, और even more horrific incidents के वो पुलिस उसको जान के जब कोई वहाँ celebration या कुछ भी हो रहा है, police will come start demanding money. How common is that? Very common. And the biggest irony is कि इसके पीछे भी एक ख्वाजा सरा माफिया का हाथ होता है. Okay. So the way it has happened is, और ये मैं मेरे ख्याल से I'm talking about it for the first time on camera. This is a big expose.
but I'm not the only one talking about it. Other trans women have also talked about it on TikTok already, so not the first one. होता क्या? होता दरअसल ये ना कि आपने ख्वाजा सरा के जिस्म को कमोडिटी में टर्न कर दिया है. So कुछ हमारे पास पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर इस किस्म के घराने हैं कि जब एक बंदा, एक मूरत हमारे पास आके चेला पढ़ती है, यानी कि चेला पढ़ने का मतलब क्या? शी इज इंडक्टेड इनटू द ख्वाजा सरा सिस्टम. लाइक आई सेड, वी आर नॉट जस्ट अ जेंडर, वी आर आल्सो अ सोशल सिस्टम. जब उसके अंदर आके इंडक्ट होती है, वो एक डेरे पे रहना शुरू करती है, और ये माशूकों का डेरा है. माशूक से मतलब द बिलवेड, द ब्यूटीफुल. वो सेक्स वर्क नहीं करती, वो डांस करती हैं, वो परफॉर्मेंस इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं. अब देयर आर पीपल हु बुक देम एंड द पीपल हु कॉल देम फॉर अ डांस, राइट? अब नाउ लेट्स अज्यूम यू आर वन एंड आई एम वन, और आप लाहौर में पहले से मौजूद हैं, and you're really hot and you're killing it, and like the doggers want you and the cockers want you and the juts want you and the butts want you, and now there's this new girl on the block called Mehrab who has tattoos, जो कि पश्तून भी है. मेरा तो काम खत्म हो गया. काम नहीं खत्म हुआ, अब थ्रेट हो जाएंगी. ओके, थ्रेटन फील करेंगी कि ये काम उड़ाएगी मेरा. अब आपको पता चले कि जी आज डोगरों के यहाँ फंक्शन हुआ है, उनके बेटे की शादी थी, और मैं नहीं इनवाइटेड, तो कौन इनवाइटेड है? वीडियोस आपने निकाल के देखी तो ये मेहरब इनवाइटेड है, ये जाके नाच रही है. तो मेहरब नाच रही है, मेहरब ने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, बिकॉज ट्रांस वुमेन दैट इज देयर ओनली मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो वो अपना दिल जान देती है उसमें, वाकई में दिल से मुजरा नाच के आती है मूर्तियां, दिलो जान से नाच के आती हैं. इतना कि लोग वाकई में कहते हैं कि वाह फंक्शन आज उठाया इन्होंने. दे नो हाउ टू एंटरटेन, दे आर ब्रिलियंट परफॉर्मर्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. मैं जाती हूँ, मैं आपको तबाही मुजरा देख के आती हूँ. आपने मेरी वीडियो देखी, आपने पता करवाया, जरा पता करवाया इसका अगला फंक्शन किधर है, पता करवाया जी अगला फंक्शन खोखरों के पास करने जा रही है. तो अपने 4 बंदे उठाए, अपने 1-2 DSP यारों को फोन किया कि सर जी तो फाशी होती पई है कि मेरे मुकाबले की मूरत उधर खड़ी हुई है और आप इस तरह आपने कुछ किया ही नहीं. मैं तो आड़े इतने काम किए ने, मैं तो आड़े इतने फंक्शन होते नच के गई हाँ. तो ये वाली बात होती है. और फिर अचानक डज होती है, वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे हंगामा होता है और फंक्शन ख़राब करना इसे कहते हैं कि फंक्शन ख़राब कर दिया गया. अब नाउ दिस इज़ बैड फॉर मी इकोनॉमिकली, बिकॉज इससे फंक्शन वालों को ये वाली बात पता चलती है कि मेहरब इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ पावर, कि इसके फंक्शनों पे बीले बदमाश भेज के इसका फंक्शन बंद करवाया जा सकता है. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल टेक? आई विल बिल्ड दैट पावर, यू विल बिल्ड दैट पावर, एंड आई विल बिल्ड दैट पावर. और अब मैं अपना बदला लूंगी. अब जब वो मेरा बदला चुका दिया जाएगा उस दूसरी का फंक्शन खराब करके, तो या हम दोनों को बिठा के बात इवन आउट करा दी जाएगी, या फिर वॉर है. How do you build that power? How does that? You build that power by hanging out with the right people. Okay. Yeah, and by being pretty. Yeah. There is something called toxic femininity as well. There is. There's generally toxicity everywhere. Yeah, and you play into that. Comes with the adrenaline rush, I think. Yeah, I mean मेरे ऊपर भी लास्ट अटैक कब हुआ है? 2021 में. जो बीला अटैक हुआ था, जब मैंने फुली ट्रांजिशन भी नहीं किया हुआ था भाई, मैं छोटे बालों में थी. मैं तो वो वाली मशूक भी नहीं थी ना कि लंबे बाल, नीले लेंस डाले हुए, मैसिव बूब्स, फंसी हुई चुन्नी, मुजरों की वीडियोस. नहीं, मैं तो बस ये मीडिया वाली, ये वाला नया पीस आजकल आया, ये वाला बड़ा पप्पू पीस चल रहा है, ये वाला पीस अब हमें चाहिए कि एक नया फ्लेवर आया. तो ये जो बीले बदमाश होते हैं ना, ये खुद ही अपना एक वो कर लेते हैं. अच्छा, ये होते हैं और ये एग्जिस्ट भी करते हैं. I'm sorry, I heard about the attack and I'm sorry about it. Like that's just, I think if it's the same, this happened like 2 years ago. Yeah, 2021, 19 September. Somebody chased your car. Blocked it. Blocked with it, 3 cars, multiple rickshaws and motorbikes. पूरा यूं बनाया था wall, इस तरह सर्कल बनाया था पूरा हॉल इस तरीके से. I'm sorry, that's very. That was so weird. Everybody froze. There were so many people with us. Everybody froze, and that's just natural. And I would have frozen as well. लेकिन पता नहीं क्या था उस दिन. I was like, नहीं मैं नहीं कुछ होने दूंगी, मैं मरूंगी सबको पकड़ के. ये मैं नहीं हो सकता इस तरीके से. Did you beat them? Yeah, I did. I did beat them quite a lot. And फिर उसका कुछ हुआ? Did they get arrested? Like what? Yeah, they got arrested. They got their bails eventually. अब वो केस चल रहा है जो कि मुझे लगता है मैं हारूंगी. अब ये भी कोई बेला ही था. और बेला हाँ. होता is it like gangster? बेला इज कॉमन वर्ड में गैंगस्टर है, लेकिन मेरे मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मैंने भी मेरे ख्याल से कल 2 दिनों में रिलीज होने वाली है उसकी फाइनल पब्लिकेशन. मैंने बीला को एज अ सेक्सुअलिटी डिफाइन किया. मैंने बोला कि दिस इज अ डिस्टिंक्ट साउथ एशियन सेक्सुअलिटी वेयर सिस मैन हैव अ वायलेंट एंड परसिस्टेंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स ट्रांस वुमेन, कि वो अट्रैक्टेड भी हैं, उन्होंने इसमें इंडल्ज भी करना है, एंड दे मस्ट यूज वायलेंस
एज एन एवेन्यू टू डू इट, वरना ये दोनों साथ साथ चलती हैं। वायलेंस एंड कंसेंशुअल में तो उनको मजा ही नहीं आता। लाइक कराची में सबसे बड़ा बिल है जो कि अब जरा माड़ा पड़ गया, उसके आप ड्राइंग रूम में ना उसने मूर्तों के बाल काट काट के ट्रॉफीज बनाई हुई हैं ऑफ ऑल द मूर्तें ऑफ ऑल द ट्रांस वुमेन दैट ही हैज रेप्ड ओपनली प्राउडली And nobody can do anything about it. नो Is it because they're just very connected या just nobody नहीं, gives a मूर्त shit? जाएगी केस करेगी कि मेरा रेप हुआ है, इस बंदे ने ठीक है। मेरा रेप किया, ठीक है, बोलेंगे जाएं जी मेडिकल कराएं, वो जाएगी ठीक है। अपना मेडिकल करा के आएगी, मेडिकल से साबित हो जाएगी ये वाली चीज। अब आगे इन्वेस्टिगेशन ये होगी क्या ये रेप ही था या ये रेप नहीं था, ये कंसेंशुअल था। डिफेंस की जो टीम है वो ये वाली चीज डाल देगी, पुलिस आएगी बोलेगी तो खुद सर इनका तो काम ही है, तो करते ही सेक्स वर्क है, इन्होंने कभी रजामंदी के साथ भी किया होगा, वेरी पिंक कि हाँ किया होगा, इसी बंदे के साथ एक दफा रजामंदी के साथ भी किया किया होगा, होगा, हाँ। लेकिन इस दफा रजामंदी के साथ नहीं किया, जिसने मुझे नंगा बांधा है ऊपर और 14 घंटे के बाद 24 घंटे धूप के अंदर बिठाई रखा है, हीरोइन के टीके लगाए हैं मुझे जबरदस्ती, बोतलें डाली हैं मेरे जिस्म के अंदर, बिकॉज दे डू ग्रैंड एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड दे वीडियो टेप इट एंड देन दे एंजॉय इट। इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट साइकोपैथिक सेक्सुअलिटी ये जो बीलों की है, लेकिन वो ही ना 2021 में उसके बाद तो नहीं हुआ ना अभी तक। Not saying that I have bilas of my own. I don't operate in that economy, but let's just say I do have some credibility. I do have some street cred now. Yeah. And some street power. I feel you need that Yeah. street cred. Well, I what do. you're telling me, you really one need And at it. the end of the day, I'm from KPK. I get street cred. I understand it. I understand its importance. ये चाहिए होता है आपको. If I have to survive looking like this in this country, which I Yeah. am by the way, walking out confidently, doing my own Yeah. shit, वो तमाम चीजें, there needs to be a very deeper level of physical comfort and security within me. But it's kind of, it's like a, also like it's a very weird cycle as well, because you need a bila to protect you. But From that a bila. From a bila. Yeah. And you never know that bila can also turn. And you need some other bilas Precisely. to कि ये ना turn करे. You've literally hit it right on the buck. कि ये ही बात है. This is bang on the buck. कि ये होता ही है कि you need me, enter into a partnership with me. मैं तुम्हारे फंक्शन करवाऊंगा, मैं तुम्हें नचवाऊंगा, तुम उनके इतने पैसे मुझे देना. It's not a business deal of sorts, romantic deal बना दी जाती है और तुम्हें और को बीला हाथ नहीं लगाएगा. अभी बीला हाथ नहीं लगाते का चाहिए उस बीले की मूर्त है. ये उस बीले की ट्रांस है, इस वाले को हमने हाथ नहीं लगाना, और वो जैसे उस बीले की प्रोटेक्शन आपके ऊपर से गई, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, जो कि इवेंचुअली हो ही जाता है, तो फिर वो वाला बीला भी आप पे वायलेंस करेगा, और जो बाकी बीले इंतजार में बैठे हुए थे वो भी आपकी ओर वायलेंस करेंगे, विच इज व्हेन यू हैव टू लीव द कंट्री और लीव द सिटी. आप भाग जाओ, आप कहीं और जाके स्टे कर लो, जरा मामला ठंडा हो जाने दो, कोई नई मूर्त आने दो, वो उसके शौकीन बन जाएंगे. ये गंदा घटिया साइकिल ऑफ ये परपेचुअल वायलेंस है, विच इज व्हाई आई डोंट पार्टिसिपेट इन इट. Yeah, it seems like it. It's like Yeah. Like there's definitely violence around the corner कहीं ना कहीं. Yeah. Also, Yeah. like yeah, we'll probably ending this soon as well. But मेरे actually बहुत सारे, वो फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा एक तो था, I also want to ask you, so you were very much at एक time पे, और at least you had started this thing with Anaya, because Anaya used to work with us at Propaganda. So you had started stand-up comedy thing. Acha, Anaya used to work for you people. We've done some projects together. All right. Yeah. Yeah, Anaya is gorgeous. I did my first stand-up show with her. Yeah. I think you guys came to Lahore as well, Lahore, Yeah. Karachi, और सारा. So वो लेकिन you didn't continue. I think you're a funny person. Like I'll be honest, you're a funny person. I think you should do it. Like I would say I'll come. I'll definitely watch My that show. stand-up shows are always sold out. Yeah, I'm sure. I do not doubt, because I know the one you did in Lahore with Anaya, that was sold out. All of my shows are always sold out. I've never done a not sold out show. Are you still doing that, or is it? यानी कि मैं stand-up से जरा बोर हो गई हूँ. Okay. मेरा ये नहीं होता कि मेरा एक मेथड आता होता है कुछ सालों के लिए. शुमाइला भट्टी वाज अ मेथड. ठीक है. Snapchat filter के वीडियोस बनाना वाज अ मेथड. वो आया, वो मैंने किया. और यही मेरा था कि because you did Shumaila Bhatti as well, Yeah. and then you left Shumaila Bhatti. And then I did Pudina Chutney, Okay. which was a drag act. She was very vulgar. Pudina Chutney was basically a whore in retirement. But that was a character. So this is something that both of these things are not coming back. They were part of your. पुदीना चटनी गई. पुदीना चटनी अब वापस नहीं आ सकती. Shumaila Bhatti. पुदीना चटनी मैं लाना चाहती हूँ वापस, लेकिन यार वो पॉलिटिकली बहुत इनकरेक्ट हो जाते हैं ना, बिकॉज नाउ दैट आई हैव ट्रांजिशनड, हाँ. तो वो मेरे ऊपर पे डंडे आ जाते हैं मेरी अपनी कम्युनिटी के बुजुर्गों की तरफ से. नहीं तो कि अब तुम ख्वाजा सरा हो, ख्वाजा सरा तुम्हारा सबको पता है, तुम ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट हो, तो नाम देखो कितना गंदा है. बाय द वे मुझे बताना चाहिए, द ख्वाजा सरा कम्युनिटी इज अ वेरी कंजर्वेटिव कम्युनिटी. मुझे पब्लिक से तो होता ही होता है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मेरी अच्छी खासी पुलिसिंग होती है, बट दैट वन आई एक्सेप्ट. वो मेरे अपने लोग हैं, वो समझ के बिठा के पूछ के मुझसे बात करते हैं कि ये तुम जा रही हो, तुम रिप्रेजेंटेशन अपनी किस तरीके से कर रही हो, इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये वाली बात किस तरह से आगे परसीव होगी, ये वाली बात किस तरह से परसीव होगी, क्या बताना है क्या नहीं बताना.
सो लाइक वो एक अपनी चीज है, वो दैट इज समथिंग। तो उसमें फिर पुदीना चटनी वाली बात आ जाती है कि उस पर 2-3 भी अगर बड़े लोगों ने क्रिटिसिज्म कर दिया हुआ ना कि मेहरा हमें तुम बड़ी पसंद हो, वी अंडरस्टैंड वेयर यूर कमिंग फ्रॉम, वी अंडरस्टैंड योर कॉमेडी, वी वुड नेवर कम टू योर शो, बट वी ऑल्सो थिंक दैट एज अ वेरी वल्नरेबल ख्वाजा सरा माइनॉरिटी, यू एज अ ख्वाजा सरा पर्सन शुड नॉट बी डूइंग दिस। तो अगर वो मुझे ये बोलेंगे ना, तो इवन इफ आई डिसएग्री विद इट इन पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट, आई वुड बी लाइक आई रिस्पेक्ट इट। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ ये वाली बात। तो पुदीना चटनी तो मेरे ख्याल से इस वजह से शी इज नॉट गोना मेक अ कमबैक। शुमाइला भट्टी मेथड मेरा अब इवॉल्व हो गया, मैं स्टैंड अप सिर्फ बोर हो गया, आई वांट टू गो टुवर्ड्स मोर प्रोड्यूस्ड वीडियोस। अगर या तो हम लोग डिजिटल के उसके ऊपर है, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, मेरे दिमाग में काफी आइडियाज हैं, मैंने पिक्चर्स फेंकी हुई अपनी इधर उधर। Do one stand up, man. I think it'll be really cool. And then I'm doing my own stand up as Mehra Bawan. Okay. और वो भी जरा ट्रिकी हो रहा है बिकॉज वहां पे वही होते हो मेहरा वो जो ट्रांस है, तो मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं क्या, बिकॉज पुदीना चटनी यूज्ड टू क्रैक जोक्स एज अ रिटायर्ड हो, शी वाज इन अ ट्रांस, शी वाज अ वुमन, वो कैरेक्टर था। तो मैं मेहरा बवान में मैं क्या, बिकॉज माय ह्यूमर इज लीथल। No, but that's fine क्योंकि individual shows भी तो होते हैं। और मेरे इंडिविजुअली होते हैं। हाँ, तो individual shows में तो like sure you think पुदीना चटनी तो was a character you built, right? Yeah. But this is just you doing a show. Yeah, but a lot of people are coming there with positive vibes and niceties कि तो ये vibes तो तोड़नी होती हैं। ट्रांसजेंडर vibes दोबारा तोड़ के कहते हैं जो बनती है ना vibes, ओहो दिल तोड़ के जब दोबारा दिल वो बंदा you're a changed person. We love trans women। और मैं आती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, hello everyone, my name is Mehra Bawan and I'm a trans woman, which basically means that it's time to take out your measuring tapes and start measuring, because I might be more hung than your dad। मेरा ये चलता है, मेरा 20 मिनट का ओपनिंग सेट ही है पूरे का पूरा, my name is Mehra Bawan, I'm a transgender woman, which basically means that this and that। और वो शुगल मैंने आगे लगाए हुए, काफी मेरे गंदे बेहुदा किस्म के मेरे सारे के सारे लतीफे हैं। So you know कि like I'm sure like yes you're very chill with trolls वगैरह और सारा, but I'm sure there sometimes कोई ऐसी troll भी होगा, जैसे वो कुमैल नंजानी ना, वो अपने एक दफा जब उसने अपनी मूवी नहीं की थी, you know कुमैल नंजानी right, the stand up comedian, so he did his movie Big Shot, नहीं Big Shot नहीं, क्या नाम था, I forgot the name, but he was talking about, you know, there's some racist things that no, actually that was Dave Chappelle as well. So he said, you know, someday have you ever faced somebody who was so racist? You were like, dude, like you start laughing, you don't get even angry. How racist is this? That doesn't even make logical sense. अच्छा वो तो तकरीबन सारे के सारे trolls हैं, but there is quite a lot of trolling Like something that even didn't make you angry, that you just started laughing. That's not possible. That is almost all of it. That That's is almost all of it. I laugh at them. Like, by the way, this is a funny thing. Like, the trolls think that they're making me angry, but I'm genuinely laughing at them. Yeah. मैं पीछे बैठ के हंस रही होती हूँ कि ये देखो ये है, ये इनका दिमाग है। लेकिन कुछ मुझे बहुत फनी भी लगते हैं। उस दिन एक किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि बाजी आपकी ऑडियो और वीडियो मैच नहीं कर रही। That was a commentary on my voice and I loved it. I think that was so creative. I really enjoyed it. Yeah, अच्छा किसी ने कहा था कि बाजी आज आपकी दाढ़ी मूंछें नजर आ रही हैं। And I really like उस तरह के कुछ बहुत ही फनी कमेंट्स आ जाए ना, नीचे मैंने जवाब भी दे दिया। मैंने कहा यार वो ब्लूटूथ नीचे इस्तेमाल कर लिया था तो ऊपर के लिए बचा ही नहीं। And he got it because I know Londa humor. I lived in Londas all my life. I get Londa. So उसने actually comment back किया कि I'm sorry I came to troll you, but yeah, and that happened. I agree. And you're really cool. I like you now. Because I generally feel if you know outrightly start cancelling people sometimes, because there will be no catharsis. There'll always be this. Yeah, this one side. This is the other side. You know, I think I generally feel that sometimes cancelling is not even the solution. हाँ. अच्छा उस दिन किसी ने आगे कमेंट किया कि सारे गेज बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं आपके अबू की कमी है अभी भी। So वो ये है। अच्छा something like that कि oh he is a biological man. तो मेरा होता है कि आपकी अम्मी ने चेक किया था क्या आपने? अच्छा नीचे my fans also sometimes come and post very toxic comments which I do appreciate a few times. कि मुंह में डाल के देखा था बाजी आपने अंदर लेके कंफर्म किया कि he is a biological man. यानी कि इस तरह की गंदी गाली भी मार देते हैं। मैं तो बड़ा इस पे मानता हूँ, सुना देनी चाहिए। सुनानी चाहिए। For sure. मतलब क्यों? I don't believe in this हर बार higher ground. No. मिशेल ओबामा। नहीं sorry हार गए ना फिर। I mean मेरा मियां ओबामा होता तो मैं भी लेती higher ground. हाँ वो भी higher ground तब लेते थे when they were not running. It was you know Hillary who was running and she lost. This is it. Mehra, thank you so much. You're very welcome. This was very fun. Yeah? Yeah. No, this is a lot of fun.